Sit down, please. So last row, am I audible? This side audible? Okay. So I hope you utilize your weekend well. Current affairs का भी classes लगा था कुछ? Yes. So current का भी preparation चल रहा है in geography. So by this time, is this book done? Yes. Because we have finished the resources also. So resources तक इस book में है. इसके बाद you can start now the second part of class 12th, which is human geography. Not much is asked from there in prelims. Prelims में यहाँ से ज़्यादा पूछता है, but still I would want you to have a look at that. The data therein is a little old, but then जैसा कि आपने देखा है सेंसस का डेटा तो अभी सरकार ने ऐसा सेंसस हुआ नहीं है, so it's the latest census that happens to be there. So we'll stick to that. The economic areas, the data that is there, उस पर से question नहीं आता, so you won't worry about that. But yes, we've seen questions coming from mains also from that book. So I would strongly recommend that now if you are done with that, please switch over to part 2 of Indian geography, which is class 12th. Is everyone okay with that? So that's there. Good afternoon to all online students also. Kindly confirm the audio and the video. And last we were talking about resources. कौन से रिसोर्स हो गए हमारे? मेटल, मिनरल्स हो गए, मेटल, नॉन मेटल, ऑयल भी हो गया, ऑयल, गैस, हाँ ऑयल, क्या कोल और गैस वो सेम ही था, न्यूक्लियर फ्यूल भी हो गया था. यस. सो फॉरेस्ट इज ऑल्सो डन, सॉइल इज ऑल्सो डन, वाटर एंड लैंड रिसोर्स. ठीक है. सो लेट्स टॉक अबाउट लैंड रिसोर्स. No question in prelims is going to come from this. So land resource is not for prelims. This is for mains. Mains. And the question is discuss the land use pattern of India and the changes therein. So this is the context of the topic which we are talking about, land resources. Get that? Discuss the land use pattern of India and the changes therein. So now that you've written this, why did I say prelims से नहीं आएगा? क्योंकि इसका कोई भी data, the data that we are looking at, the data is generally 4 to 5 years old. ये data daily नहीं बदलता रहता है. Land use is a country has a visible land area, yes, and a finite land area, and the country policy makers will be using it. Will be using it, yes. So how do we use our land? And is all land usable? All land usable. So land is a finite resource. How are we going to use it? What is it needed for? And what are its various land uses? So if I ask you, how would a country use its land? So decide 5 heads. Everyone brainstorm 5 areas in which a country should use its land. 5 areas जहां पे आपको लगता है कंट्री को लैंड यूज करना है. 5 areas. Keeping India in mind, 5 areas इंडिया का जो लैंड है वो कहाँ यूज होता होगा.
ओके परफेक्ट, जो भी आपको समझ में आए। लैंड यूज की अब हम बात कर रहे हैं। लैंड को यूज करना। सो टेल मी व्हाट इज इट दैट्स योर मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको लगा। अपना एक पॉइंट डिसाइड करो, रेज योर हैंड्स। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में होना चाहिए। किस लिए एग्रीकल्चर में होना चाहिए? सर खाना खाने के नहीं, खाना, ठीक है। और किसके लिए करोगे? हाउसिंग, सर हाउस होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है। हाउसिंग, हाउसिंग क्यों चाहिए? सर रहना भी तो है कहीं पर मुझे, और फिर मेरे को सोना भी है, और अगर सर बोर हुआ तो मूवी भी देखना है, तो सिनेमा भी होना चाहिए, ठीक है। और क्या, बीमार हुआ तो हॉस्पिटल भी होना चाहिए। मजे लेने के लिए स्कूल भी होना चाहिए, कॉलेज भी होना चाहिए। स्कूल कॉलेज चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इस सब को अगर मैं आपकी बुआ बना दूं, बिल्ट अप एरिया, चलेगा? इमोशनल मत हो ना बुआ के लिए। बिल्ट अप एरिया ये भी चाहिए। लैंड है, लैंड में बिल्ट अप है। सो क्या we'll have to separate agriculture from this built up area or not? दो एरिया तो आपने खपा लिए, अब क्या चाहिए? इंडस्ट्री इसी में करोगे ना, जब ये बिल्ट अप ही तो है, इंडस्ट्री के लिए और प्लॉट खींचोगे। बन गया। रिसोर्स एक्सप्लोरेशन कैसे होता है? माइन ना, तो माइन भी तो बिल्ट अप ही है। और कितना है? यहीं पे होगा, माइन खोलोगे, एक पूरा का पूरा केजीएफ बनाओगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा बन गया। यस, हाँ जी। अच्छा सर ट्रांसपोर्टेशन, ये इधर लिख दूं, सड़क। फिर बोलेगा सर एयरपोर्ट, पोर्ट, यस हो सकता है। सर स्टूडेंट के लिए, यूपीएससी वालों के लिए लाइब्रेरी तो लिखा ही नहीं आपने, लाइब्रेरी। तो जैसे ही आपके अंदर से एक इमोशन आया, ये नहीं आया, तो इस वाले को चेक कर लेना, ये बुआ हेल्प करेंगे आपको। ये सब आपके लिए, जो भी आप सोच सकते हो, जो चाहता है वो मिलेगा। अब यहां पर फॉरेस्ट जो बचा हुआ उसको क्या करें? फॉरेस्ट जब तक नहीं कट रहा है तब तक फॉरेस्ट। और कुछ? सर हम क्या करें, क्लास नहीं चल रही है, कुछ करिए। अरे बाकी लोग की चल रही है बच्चे, खैर ये मेरा शायद सुन भी नहीं पा रहे, तो इनको मैं क्या जवाब दूं? हाँ बताइए। स्पेस स्टेशन, ये देखो ऐसे, स्पेस स्टेशन। अचानक मतलब ऐसा अगर आइडिया है ना सर, कब्रिस्तान, कब्रिस्तान। इस सब मुझे पता है, जितना भी ह्यूमंस को चाहिए, जो भी ह्यूमंस को बनाना है वो सब इधर आ गया। हाँ जी, और क्या करेंगे? हो गया लैंड यूज। आपको कहा था पांच, सोचो पांच में कई तो इसी में आ गए। सरफेस वाटर, वो तो नदी अपने आप करी, तुम्हें क्या बनाना है? नदी ने अपना बना रखा है, अगर तुम रास्ते में है तुम्हें भी ले जाएगी नदी, वो तो है ही ना। कनाल, कनाल। अभी तक ना यू थिंकिंग वेरी सेल्फिशली, मेरे लिए क्या, मेरे लिए क्या, मैं खाऊंगा कहाँ, मैं सोऊंगा कहाँ, मेरे लिए पानी कहाँ से आएगा, ये कहाँ से आएगा? जो बचा वो फॉरेस्ट है। इट्स इंपॉर्टेंट। फॉरेस्ट नहीं है तो फॉरेस्ट का एक इकोलॉजिकल रोल होता है, उसके बिना काम चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। जो एरिया आपका एग्रीकल्चर नहीं देता है, एग्रीकल्चर में आपको एनिमल्स भी तो चाहिए। एनिमल्स के खाने के लिए क्या करोगे? पैस्चर लैंड भी चाहिए कि नहीं चाहिए? यस नो, फॉरेस्ट भी चाहिए, पैस्चर लैंड भी चाहिए। तो दीज आर देयर, कहीं तो आएगा, कहीं तो वो भी होगा। एंड टेल मी
ऑल द बुक्स दैट यू बॉट फॉर यूपीएससी सब यूज कर रहे हो? कुछ तो खरीदने के नाम की खरीदेंगे, यू रिग्रेट यार ये क्यों ले ली थी, ऐसे नो। सो कुछ एरिया तो ऐसा होगा जो आपका डिग्रेडेड होगा, यस नो, डिग्रेडेड लैंड होगा, माइट बी पॉसिबल नो, दिस लैंड इज नॉट गुड फॉर एनीथिंग। कैसा है, वाटर लॉक्ड एरिया है, मार्शी एरिया है, समथिंग यू कांट डू दैट, यस, दिस इज योर डिग्रेडेड एरिया। वो देखो पोर्ट बनाएंगे, डॉकयार्ड बनाएंगे, और क्या है, अनुज कह रहे हैं लैंड फॉर ओशन, कुछ भी। एक कह रहा सोलर पैनल लगाऊंगा, घर पे लगा ले, छत पे फ्री बिजली भी आएगी। हीटिंग ऑफ लैंड मेक्स लो प्रेशर, हो जाता है, एग्जाम पास आता है ना तो ऐसी बहकी बहकी बातें करने लगते, क्वेश्चन क्या होता है, जवाब क्या होता है, दैट्स ओके, ठीक है। तो ये एफएम रेडियो पे अच्छा लगता है, यहाँ नहीं लगता है वो। So is everyone okay? तो कुछ heads हैं, please understand. A country's planners have to think about the human people who are living over there, their food security, their रहने के लिए जो जगह है, वो सारी चीजें, and all those things they have to, ठीक है। वर्ल्ड ओवर अगर मैं वर्ल्ड की बात करता हूं, ये 30% है, कितना है, 30%। इंडिया में भी कितना बताया था, 25 के करीब चल रहा है कि नहीं चल रहा है, 25, तो इंडिया का लो चल रहा है, इसको हाथ नहीं लगाना है। इट इज नॉट दैट अरे इतने फॉरेस्ट है इनको और एनक्रोच कर लेते, दैट्स नॉट अ गुड आइडिया बिकॉज दे हैव अ पर्टिकुलर रोल टू प्ले। देन वी आर लुकिंग एट एग्रीकल्चर, ये भी लैंड है, इंपॉर्टेंट लैंड है, ये भी इंपॉर्टेंट लैंड है, यस नो। इन दोनों में कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर, चलो ठीक है। वर्ल्ड ने इसको भी 30% दिया हुआ है, वर्ल्ड ने इसको भी 30% दिया हुआ है, और बाकी सब 30%, तो ये वर्ल्ड का ऐसा चल रहा है। बल्कि ये जो पेस्चर्स हैं, पेस्चर्स, डिग्रेडेड लैंड, ये भी एग्रीकल्चर में भी जोड़ सकते समथिंग। सो वी आर लुकिंग एट 10% इनको मान लो प्रोबेबली, सो दैट्स व्हाट द वर्ल्ड इज डूइंग। इज एवरीवन ओके? तो पहले तो आइडिया ये है, द क्वेश्चन वाज एग्जामिन द लैंड यूज ऑफ इंडिया और डिस्कस द लैंड यूज ऑफ इंडिया, दैट मींस इज इंडियाज लैंड यूज गुड और नॉट, इज इंडियाज लैंड यूज good or not, adequate or not, good तो कैसे होगा, it will depend upon like whether we have sufficient that or not. So India का land use मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, this is India's land use, ठीक है। अभी पहले हम लैंड को उस तरह से देख रहे हैं कि लैंड रिसोर्स कैसे है, प्लेन, माउंटेन्स, प्लेटूस, ठीक है। So India has land under variety, how much is plain, 43%, don't draw this straight away, right, plains how much, 43%, mountain 30% and 27% is plateau, लिख लो जल्दी से। लैंड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, पीपल हु हैवंट सीन दैट, ये प्लेन एरियाज एंड दिस थिंग। So one data when we are talking about land resources of India, all land, India is not a complete plain land. So 43% is plain, 30% is mountains and 27% is plateau. यही है, इससे ज्यादा तो नहीं, इसी को यूज करना है। व्हाट आर द यूजेस, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, बिल्ट अप एरिया, ये तीन तो रहेगा, उसके अलावा जो डिग्रेडेड एरिया होगा उसको देखेंगे। डू वी गेट दैट? इज एवरीवन ओके विद दिस? वर्ल्ड का, वर्ल्ड में विच आई टोल्ड यू, लैंड इज क्रूशियल नेचुरल रिसोर्स, गिवन द फाइनाइट सप्लाई ऑफ लैंड रिसोर्सेज इट्स सस्टेनेबल मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। सो व्हेन वी आर लुकिंग एट एग्रीकल्चरल लैंड 4.7 billion, forest is 4 billion, and cropland, that's what we are talking about, is something, you don't have to look at this data, but I am saying इसी तरह हमें इंडिया का भी आना चाहिए, वर्ल्ड का नहीं पूछेगा। This is just an information which is showing you, and this is also not in percentages, so it is in billion areas, so we are not looking at 4 which I am talking about, 4 billion is around 30%, 4 billion is around 30%। इसमें एग्रीकल्चरल लैंड में कुछ तो क्रॉप में यूज हो रहा है, कुछ नॉन क्रॉप यूजेस के लिए भी हो रहा है, सो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। डू वी गेट दैट? सो नाउ इंडियाज लैंड यूज, एवरीवन प्लीज राइट डाउन, इंडियाज लैंड यूज को कौन देखता है? द डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर क्लासिफाइज लैंड अंडर 9 कैटेगरीज। ये जल्दी से लिख लो, फॉर इंडिया, वर्ल्ड का नहीं देखना था, फॉर इंडिया
पहले पता होना चाहिए डिपार्टमेंट कौन सा है. For India, the Directorate of Economic and Statistics, Ministry of Agriculture, Government of India classifies land use under 9 categories. You don't have to bother about 9 categories, वो भी अभी बता दूंगा. Land use trends are continuously changing over time. Each land use category except forest experience its share in growth. ठीक है, मिनिस्ट्री लिख लिया, डिपार्टमेंट लिख लिया. प्लीज राइट डाउन. इंडियन लैंड यूज under these 9 categories has been witnessing constant changes in alignment with the changing demands of the population and economy. Changing demands of the population and economy of the country. The following trends are visible. The following trends are visible. So इसको कैसे बनाते हैं ये थोड़ा सा इनोवेटिव स्टाइल में आपको बता रहा हूं, which is not in the books. That's what we are going to look at. ठीक है. So एक this blue color is for forest. This blue color is for forest. So कितना था forest? ये कब का है बच्चों? This is 1960. 1960 में हमारा फॉरेस्ट कितना चला गया था? 18. अभी कितना है? 23. ठीक है. तो क्या हो रहा है फॉरेस्ट का? इंक्रीज. सो इंडिया का तो ताबड़तोड़ चल रहा है इंक्रीज. आई वांट टू टेल यू फॉरेस्ट का ट्रेंड. एवरीवन फॉरेस्ट को देखें. इंडियन फॉरेस्ट यू रिटन एज फॉलोज. सो यहां पर लिखेंगे फॉरेस्ट. अब डेटा कोई याद नहीं रखता है, तो ये इंडिया का फॉरेस्ट. इंडिया का फॉरेस्ट यहां तक 1947 तक, 1947 हमारी आजादी तक. यस, इसको नहीं चाहते तो 1950s तक लिख सकते हो. इट वॉज डिक्लाइनिंग. ठीक है. कहां तक पहुंच गया? 18 तक. और फिर हमने इसको ये किया. यहां पर कितना आ गया था? 18. अब कितना चल रहा है? 23. ये जो उस डेटा के हिसाब से अब हमने कहा 25 तक चला गया. ये कितना हो गया? 25 इन 2020 चला. तो दिस इज प्री इंडिपेंडेंस, दिस इज पोस्ट independence. So trends are as follows. I am saying rather than memorizing these figures, do we see India's land use? So पहले इंडिया में बहुत फॉरेस्ट हुआ करता था ब्रिटिश के टाइम पे. chopped off, kept on coming down. Post independence also it was down because we continued with the downward momentum, and then we became conscious. 70s में we started coming up with laws, forest protection, then forest policy and all that. This is where it has come. So मेरा काम है geography. I am talking about geography. Environment teacher would talk about the policies over there. Is everyone okay with this? Clear? So इसे कहते हैं trend. Why am I giving you this trend? अगर मैंने आपको ये दिया, will you be able to answer this? Discuss the land use patterns. Discuss is not just give me data. अब ये data किस काम का? आप मुझे बताइए कितना याद कर सकते हो? 1960 का डेटा, 14-15 का डेटा, अभी कौन सा अवेलेबल होगा? 20 का ही अवेलेबल होगा. 25 तक तो जाना ही नहीं. 20 का अवेलेबल होगा, उसमें भी लगभग ऐसा ही होगा.
हाउ मेनी फ्लो चार्ट्स विल यू रिमेंबर? हमें पता है फॉरेस्ट इज इंपॉर्टेंट, यस और नो? इज फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस? किसी के लिए भी, वर्ल्ड के लिए भी चाहिए, ऑल लैंड यूजेस में हमें चाहिए, फॉरेस्ट चाहिए. फॉरेस्ट हैज एन इकोलॉजिकल रोल. इंडिया अभी 25 पर पहुंचा है. एंड आई हैव गिवन यू अ टेम्पोरल एनालिसिस. क्या इसका स्पेशियल एनालिसिस हम कर चुके हैं? स्पेशियल मींस वेयर. ये तो क्या हो गया? टेम्पोरल. सो आई डोंट नो whether you remember or not. 35, 25, 15, 10. Did we look at that? Central India, East India, Western Ghat and Uttarakhand. ये भी लिखवाया था फॉरेस्ट क्लास में. जिसको याद आ रहा है अच्छी बात है, जिसको नहीं आ रहा कोई टेंशन नहीं है. So we've already done that. So these trends are there. और यहां पर हमने देखा है जहां भी प्लेन था, रिमेंबर इंडिया हैज प्लेन्स, 40% प्लेन है ना, उसी में तो एग्रीकल्चर हो सकता है. वहां फॉरेस्ट नहीं लगाएंगे. कहां पे लगाएंगे? जहां एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है, बिकॉज फूड डिमांड भी तो है. वी आर द मोस्ट पॉपुलस कंट्री. सो यहां पर हमारे पास क्या है? माउंटेन एंड प्लेटू. माउंटेन एंड प्लेटू को जितना मर्जी करना करिए. यहां पर क्या है? रिमेंबर अब तो सतपुड़ा आपको पता है, सतपुड़ा है, यहां पर छोटा नागपुर आ जाएगा, ऑल दोस थिंग्स. ये पूरा वेस्टर्न घाट मेक सेंस कि यहां पर जहां पर एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है वहां पे करिए. एंड व्हाट्स द टारगेट फॉर दीज एरियाज? हाउ मच शुड बी द फॉरेस्ट कवर? 2/3. हाईलैंड के लिए 2/3 बोला है हमने, और प्लेन एरियाज के लिए 1/3. Make sense, no? See, we have limited resources. Plains are the ones where I can have built up area. Plains are the ones where I can have agricultural. तो यहां पे करिए, दबा के करिए. सो कंट्री को जितना भी फॉरेस्ट चाहिए, जितना फॉरेस्ट चाहिए यहां पे करिए. इनफैक्ट इट इज स्टूपिडिटी टू डिफॉरेस्ट दीज एरियाज. माउंटेन्स आर फ्रेजाइल इकोसिस्टम्स. ये भी पूछा आपसे एनवायरमेंट का, मीन्स में क्वेश्चन आया कि डिस्कस माउंटेन्स एज फ्रेजाइल इकोसिस्टम्स. सो वी आर लुकिंग एट दोज माउंटेन्स आर फ्रेजाइल इकोसिस्टम्स. As it is, if you deforest, there are issues of soil erosion, there are issues of slope destabilization, landslides happening, and many things happening in that. So why not let them be forested? They will also monitor the water table over there. वहाँ पर global warming को भी control करेंगे. Remember global warming. And when they are looking at water cycle, they are like, as we said, no, glaciers are our, water towers. These forests are very very important. Mountain areas, they create very good catchment basins. बहुत important है. So that is where I am looking at. Forest का role बनता है. We have missed on it and we are making it. And now I also want to add, saying that planting trees along the roads for compensation, I don't consider it as a good idea. आप सोचिए एक healthy forest को, ecosystem को हम chop off कर दे रहे हैं. उसको चॉप ऑफ करेंगे, उसकी जगह पर क्या करेंगे? फॉरेस्ट लगा देंगे. कहां पर लगाएंगे? सड़क के किनारे किनारे सड़क लगा, वो पेड़ लगा रहे. आई डोंट नो वेदर जिन्होंने एनवायरमेंट क्लास में किया, यू वुड हैव हर्ड ऑफ कैंपा फंड्स, कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन. यस, so those are the funds. So if a corporate entity or a government entity also decides to have some built up area in a forested area, then what they are supposed to, for whatever forest they've chopped off, they are supposed to pay money to a fund which is called the CAMPA fund, compensatory afforestation management and planning के लिए वो है. So that fund will be there, but that fund is not used later on. उन पेड़ों को लगाओगे कहां पर? Yes or no? Or forest is a natural ecosystem. Remember, soil takes thousands of years to just get 1 millimeter. आप उस सब को erode करने वाले हो. So that is one important aspect which I wanted to bring to you. I hope you got a way of looking at trends. ग्राफ बनाओ, काम चलेगा. ठीक है. उसके बाद क्या दिख रहा है मुझे? बिल्ट अप एरिया रेड है. बिल्ट अप एरिया नहीं तो बैरन है. चलो एग्रीकल्चर वाला करें. दिस येलो एरिया इज कॉल्ड NSA. व्हाट इज इट कॉल्ड? नेट सोन एरिया. तो ये कितना था हमारा? 46. अभी कितना है? 45.5. NSA मींस नेट सोन एरिया. उसके अलावा कुछ है? अच्छा, फॉरेस्ट के साथ में वी ऑल्सो हैव एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स. ये भी कहीं पर आएगा. ये हमारा 1%, ये कुछ 1.5 था, 1% है, तो उसमें 1% ऐड हो जाएगा बिकॉज जो ट्रीज के अंडर है. सो दैट ऑल्सो विल बी एडेड. तो हमने यहाँ पर कितना किया? 25 हमने वो लिख दिया. दीज 2 हेड्स आर गोइंग इनटू दिस. आउट ऑफ 9, 2 आर डन. 1 is forest, other is area under trees.
they have come to 25. Now let us look at agriculture net sown area. Net sown area was 46 and 45.5. Net sown area NSA means agricultural land है, net sown area. ये कैसे चल रहा है? 1960 2015 ऐसे ही 2015 का डेटा है ये शायद, हाँ जी 2015 का, तो 46.2 45.5 46.2 45.5 ठीक है 46.2 45.5 उससे पहले कितना था? अब से यही कुछ होगा पूरी ये यहां वाले एरिया में आप 47 डाल दो तो क्या हो रहा है ये 47 46 45.5. व्हाट्स हैपनिंग टू नेट सोन एरिया? डिक्लाइन हो रहा है. अच्छी बात है बुरी बात है? फॉरेस्ट तो हमारा डिक्लाइन हो गया था, धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं बट वी हैवंट रीच्ड द डिजायर्ड लेवल. नेट सोन एरिया कम हो रहा है, अच्छी बात बुरी बात? क्या बुराई है इसमें? What's the problem with net sown area? The area that we are sowing, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, एग्रीकल्चर का लैंड आप जो है हथिया रहे हैं. अच्छा किस लिए कर रहे हैं लोग? लैंड क्यों ले रहे हैं उसका? चलिए बिल्डर लोग जो है अपना बिल्डिंग बना रहे हैं, ये सब बना रहे हैं. अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 9 कैटेगरीज में अभी तक कितनी हुई है? 3 हो गई ना, 2 तो इसमें हो गया फॉरेस्ट प्लस ट्रीज एंड ग्रोव्स, तो 2 तो इसमें हो गया. अब एक नेट सोन एरिया. अब इसमें मुझे एक कैटेगरी दिख रही है फैलो, करंट फैलो. व्हाट इज करंट फैलो? डू यू नो व्हाट इज फैलो लैंड? फैलो इज द फार्मर डिसाइड्स कि मैं इस खेत में इस साल खेती नहीं करूंगा. आई विल नॉट ग्रो क्रॉप इन दिस ईयर. व्हाई नॉट? आई वांट द सॉइल टू रीजनरेट. दैट्स कॉल्ड करंट फैलो. एक साल में नहीं करूंगा. बट इजंट दैट एक्चुअली एग्रीकल्चरल लैंड ओनली? है तो वो भी एग्रीकल्चरल लैंड और नॉट? तो एग्रीकल्चरल लैंड वो भी है बट इज चोजन नॉट टू यूज इट. ठीक है. उसके बाद फैलो अदर देन करंट फैलो, ये भी एक और है. फैलो की भी 2 कैटेगरी हो गई. एक साल के अंदर अंदर छोड़ा तो वो कहलाता फैलो, और अगर एक साल से ज्यादा से खाली छोड़ रखा है, इफ यू लेफ्ट इट वेकेंट फॉर मोर देन 1 ईयर, देन व्हाट इज इट कॉल्ड? अदर देन करंट फैलो. 2 साल से क्यों छोड़ा है? मे बी फार्मर रैन आउट ऑफ मनी. ट्रू, फार्मर डिड नॉट हैव दैट मच, या उसको लगा कि यार मैं 2 साल नहीं कर रहा हूं, दैट्स ओके, चल सकता है. बट वो भी तो मेरा लैंड एग्रीकल्चर के लिए है. ट्रू और नॉट? उसके बाद आई हैव अ लैंड वेयर पीपल हैव बीन डंपिंग गार्बेज. हो जाता है ऐसे गांव शहर में, आपने देखा है? ये खुला खेत देखा, उसमें जो है डंप करना शुरू कर दिया. अब वो डंप 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 होता जा रहा है. अब उस डंप में क्या है? अगर बहुत सारा लोगों ने प्लास्टिक डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, कैन आई डू एग्रीकल्चर? नहीं कर सकते. कब तक नहीं कर सकते? कंस्ट्रक्शन का मटेरियल है, कूड़ा डाल देता है, अर्बन वेस्ट डाल देता है, सब कुछ डाल सकता है. इज दैट एरिया गुड फॉर एग्रीकल्चर? अभी नहीं है, बट इफ आई रिमूव द वेस्ट, इट इज केपेबल ऑफ एग्रीकल्चर और नॉट? दैट इज कॉल्ड अ कल्चरेबल वेस्ट लैंड. ठीक है. तो 3 कैटेगरी क्या है? करंट फैलो, फैलो अदर देन करंट फैलो, और कल्चरेबल वेस्ट लैंड. तो यहां पे लिख दूं NSA प्लस करंट फैलो प्लस फैलो अदर देन करंट प्लस कल्चरेबल वेस्टलैंड. ये किसने दिया है हमें? डिपार्टमेंट ने ये क्लासिफिकेशन दिया. कितनी कैटेगरी? 9 कैटेगरीज है. 9 कैटेगरीज में से मैंने आपको कितनी पढ़ा दी? 2 वो थी और 4 ये. 4 कैटेगरीज. आर ऑल 4 पॉसिबल? एग्रीकल्चर इज पॉसिबल और नॉट? भाई इसको तो वो क्रॉप करता ही करता है, NSA को तो करता है, 45% तो वो करता ही है, बट ही में चूज करंट फैलो करना है या नहीं करना है? फैलो एंड दिस थिंग, इनका भी तो परसेंटेज आता है. परसेंटेज देखें प्लीज, राइट डाउन करंट फैलो. कहीं पे मुझे ऐड करके बताना अपने
मोबाइल में, कैलकुलेटर में, करंट फैलो 5% है, ठीक है, ऐड करके बताना, डोंट राइट एनीवेयर, दिस इज 5% इज करंट फैलो फॉर 2015 के लिए कह रहा हूं, 5% इज करंट फैलो, फैलो अदर देन करंट इज 3.6%, 3.6%, and culturable wasteland is 4%. Culturable wasteland is 4%. कितना हो गया? 12.6, ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया? 58.1, ठीक है, 58.1, यहां पर कितना था? 46, इसमें देखें, पीछे चलें, थोड़ा सा डेटा को आई एम प्लेइंग विद इट। सो यहां पर हमारे पास था करंट फैलो 3.75, फैलो अदर देन करंट वाज 3.5 एंड 6, 6 12 एंड 13.5, तो 13.5 ऐड करो, इसमें कितना बनता है? 0.7, 59.7, डू वी गेट दैट? So इंडिया में what is happening to the net zone area? डिक्रीज कर रहा है, 59.7 था और उससे थोड़ा सा डाउन आ रहा है, उससे पहले इससे ज्यादा ही था, तो दिस इज द कर्व फॉर दिस थिंग। इज एवरीवन ओके? ये हमारा नेट जोन एरिया और ये 4 भी हो गए, 6 आर डन। अब क्या बचे? 3 बचे ना, उनका भी देख लेते, बट हमारे पास फॉरेस्ट एंड ट्रीज, ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी ए, बी क्या है? एग्रीकल्चर, तीसरा लेट्स गो टू द बुआ रीजन, चले उसको भी देख लेते हैं, बिल्ट अप रीजन। सो एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूज, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूज is 5% here, 5% here and 8.7% there, ठीक है, नॉन एग्रीकल्चरल यूज के लिए कितना हो गया? 5 से 8.7, सी कर दूं, सी। नॉन एग्रीकल्चरल यूज 1960 में था 5%, अभी कितना है 2015 में? 8.7, 9% मान लो, चलेगा? 9%। What is this? Non-agricultural use. So non-agricultural use is what? Built up house, school, whatever you want to. There is barren land. Barren land means no agriculture, but unculturable also. Even if you put seeds in that, वो grow नहीं करेगा. So can I say ये भी एग्रीकल्चर में नहीं, नॉन एग्रीकल्चर ही होगा? सो ये कितना है कैटेगरी, अगर मुझे इसको देखना हो तो? बैरन 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 3.18 है, 18.11, और ये कितना रह गया? 5.5, चलो 18.11, एक ये हो गया, एक बैरन एंड अनकल्चरेबल। कितना था? 18 था, और अब कितना है? 5 रह गया। सो बैरन लैंड हैज श्रंक, अनकल्चरेबल लैंड हैज श्रंक। वील लुक एट दैट कि इसमें क्या हो रहा है, एंड देन वील ट्राई एंड आंसर द क्वेश्चन दैट वी हैव। मैं आपको डेटा को, सो दैट यू डोंट फॉरगेट, यू डोंट हैव टू मग अप द डेटा, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। सो 5 था और वो था, और क्या बचा हमारे पास? कोई सा जो मैंने छोड़ा अभी तक? फॉरेस्ट, बैरन, एरिया अंडर नॉन एग्री, परमानेंट पेस्चर्स, ओके, एरिया अंडर पेस्चर्स रह गया ना मेरा? पेस्चर्स पेस्चर्स पेस्चर्स, बस पेस्चर्स ही रह गया। 4.7, अभी कितना है? 3.3, 4.7 3.3, पेस्चर्स भी डाल दूं, पेस्चर्स उनके लिए 4.7 से 3.3। Everyone with me on this?
Now we will not look at any more data now. Your graphs are ready. We are going to understand India's land use. Are you happy with what is happening in the forest? Yes, are you happy with it? So I am saying sorry, I am very very unhappy. हमारा टारगेट 33% बहुत दूर है यार. Yes or no? We have a gap of how much? 8% चाहिए. 8% चाहिए. Are you happy with the things what's happening in agriculture to NSA and others? Are you happy with it? Happy or no? सोच के बताओ. You have to take a call. इसमें तो आपने हैप्पी कहा, यू सेड इंक्रीज है, सो आई क्वेश्चन योर हैप्पीनेस. आई सेड इंक्रीज है बट एक मार्जिनल इंक्रीज यार, ये हो जाना चाहिए था अभी तक. 8% का एक शॉर्टफॉल है. ओके, हियर यू आर सेइंग यू आर नॉट हैप्पी. व्हाई यू आर अनहैप्पी? सर ये लैंड तो नीचे जा रहा है. यस, सो यू आर अनहैप्पी विद दैट. परफेक्ट, आई एम विद यू. अभी मैं होल्ड कर रहा हूं इस पर. सो नाउ इंडिया के पास कितना ये लैंड था जो नॉन एग्रीकल्चर हो सकता है? 5, 18 एंड 5 टोटल कितना था? कितना? 20, 28 मान लो. अभी कितना है? 17.3. यस, डन. आर यू हैप्पी विद दिस? तो इंडिया में ना कल्चरेबल लैंड था. लैंड इज इंपॉर्टेंट बट बैरन एंड अनकल्चरेबल लैंड था. हमने उसको रिड्यूस कर दिया. अच्छा किया कि नहीं किया? बैरन लैंड है, अनकल्चरेबल है, उसको बेटर कर दिया. 5 ही रह गया. ट्रू और नॉट? कहीं पे यूज हुआ होगा. वी वुड हैव यूज्ड इट बिकॉज फाइनली यही इंडिया का लैंड है पूरा का पूरा. ऑल लैंड इज दिस ओनली. पेस्चर्स नीचे आ रहे. वी हैव द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैटल पॉपुलेशन. गाय हमारी माता है. खिलाओगे क्या? खिलाओगे क्या? पेस्चर्स आर श्रिंकिंग. है ही नहीं. ठीक है. और ये क्या है? 1960 से 2015, 1960 से 2015, I want to tell you that India's population has jumped 4 times. Built up area? Is there a shortage of housing in India? Is there a shortage of schools in India? Hospitals in India? Yes, सब चीजों की शॉर्टेज है ही नहीं. इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जगह ही नहीं है. अब आप मुझे एक बात बताइए, यू आर रनिंग द बजट ऑफ योर हाउस और ये आपकी रिपोर्ट कार्ड है, तो फेल हो गया कि नहीं? फुल लैंड है इंडिया का, यही लैंड है, कहीं और से आना नहीं. तुम्हें लग रहा है पाकिस्तान वापस मिल जाएगा क्योंकि सरकार कह रही है. सरकार बढ़िया पिलाती है. ये सुनो, इतना पीने का क्या मतलब भाई? पहले इसे तो संभाले. ट्रू और नॉट? सो फॉरेस्ट में तो आई एम सेइंग इकोलॉजिकली साइंटिफिकली देयर इज एन एरर. 8% लैंड चाहिए. 8% क्या चाहिए? लैंड चाहिए. पैस्चर्स के लिए, गौवंश की रक्षा के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए? सर इतना कैटल है, पैस्चर तो है, और ऐसे स्ट्रे कैटल की तो वैसे इज्जत नहीं होती है. जो पालतू जानवर है उनको भी तो चारा खिलाना है कि नहीं खिलाना है? यहां भी कुछ चाहिए कि नहीं? कितना % चलेगा जल्दी बताओ. अरे 5, औकात में रहो, एक ही दे दे बहुत है. क्या 5% कहां से बट रहा है? तो क्या पाकिस्तान के बाद चाइना भी ले रहा है क्या? अपन इंच में ऐसा नहीं सोचना चाहिए. वो कहने के लिए सडनली सोच रहा है कि चाइना भी आ रहा है. कुछ तो यहाँ ऐसे भी बैठे हुए, अगला पुतिन भी यहीं पर है, वो मिल जाएगा. अखंड भारत. यस, प्रखंड भारत, पोल तक भारत. ऐसा ये वाली चरस ज्यादा हो जाती तो ऐसा होने लगता है. ठीक है, हाँ जी. 5 to 9%. इसमें बढ़ना है कि नहीं यार? स्कूल हॉस्पिटल के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए? सीरियसली, फॉर आवर पॉपुलेशन वी नीड दैट. सिर्फ ये थोड़ी कि नया पार्लियामेंट हाउस होगा तो बस, उसके अलावा भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए कि नहीं चाहिए? सो वी नीड हेयर सब जगह बढ़ाना. ये फैलो वाला हमने घटाया विच इज वेरी गुड. 5% है मेरे पास अभी भी आई है 5%. कितना है? क्योंकि ये बैरन है ना, अनकल्चरेबल है, बैरन है, 5% है. इसको मैं खा सकता हूं. इसको खाकर कहां लगाऊंगा? ये जो थोड़े से हैं पैसे कहां कहां खर्च करेंगे? 8% ये मांग रहा है, ये भी कम से कम 5% मांगेगा यार. और ये भी 1 या 2% मांगेगा. कितना चाहिए? 8, 10, 15% इज रिक्वायर्ड.
इंडिया को टू मीट इट्स नीड चेंजिंग लैंड यूज, इंडिया नीड्स 15% ऑफ लैंड. कितना अवेलेबल है? 5% अवेलेबल. अभी तो मैं इधर आया नहीं हूं आपके फेवरेट में. यहां भी तो मांग रहे हो. यहां कितना चाहिए? यहां कितना चाहिए? नेट सोन एरिया, फैलो एंड ऑल दैट. तो मिनिमम 5% तो चाहिए सर, किसानों के लिए कुछ करना चाहिए. ये 58 है तो कम से कम 63% तो होना चाहिए, तभी कुछ होगा. कहां से लाओगे? सर मेरी तो सिचुएशन ही सेम है, मेरे पास टाइम है ही नहीं, फिर भी पढ़ना है. हिस्ट्री के लिए इतना चलेगा, ज्योग्राफी. तो तुम्हारी तरह यूपीएससी एस्पिरेंट की प्लानिंग चल रही है कि टाइम है नहीं, पढ़ना सब कुछ है. तो डू यू अंडरस्टैंड, कंट्री चलाने के लिए उसका लैंड यूज की पॉलिसी बनाना इज अ वाइज वर्क. कैसे नो? इधर धर्म के नाम पर, जाति पाति के नाम पर एंड ऑल दोस पे जो मंत्री चला लेते हैं, दे आर in a way blocking a very strong foundation which you and I really deserve. It should have come to us by now. ठीक है? सिर्फ जाकर आध्यात्मिक यात्रा, और वो भी आध्यात्मिक नहीं है, वो भी आध्यात्मिक है नहीं, वो भी जो भी चल रहा है. वी नीड टू थिंक अबाउट दिस. देयर इज अ बिग कंसर्न ओवर हियर. आपको पता भी नहीं है, ये तो आप यूपीएससी में आ गए गलती से तैयारी में, आपको ये सब जहर मैं बता रहा हूँ. रियल इश्यूज ये हैं, रियल इश्यूज ये हैं. बाकी को तो टेंशन है कि कुणाल कामरा कॉमेडी कैसे कर रहा है, उस पर देश लड़ रहा है, और औरंगजेब की कब्र में खुदाई करनी है. भाई 5% लैंड निकालना है, कितना निकाल लोगे उसकी कब्र से? लगा हुआ. ट्रू और नॉट? सो इमेजिन, मतलब द रियल इश्यूज डू नॉट इवन सरफेस. And I also want to tell you, the people who were taught all this, they are supposed to obey the politicians. उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं. द ब्यूरोक्रेट्स वो तो पढ़ के जाएंगे ना, उनको तो रियल इश्यूज बताए जाएंगे. So your bureaucrats will be, they are really carrying the information, and what I am talking to you, they really carry that. And when they go and they inform the minister, चुप बुड़बक. अब बुड़बक बोल नहीं सकता, बोलेगा तो उसका प्रमोशन भी चला जाएगा कि नहीं? सो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. उसमें क्या होगा फिर? समझदार ब्यूरोक्रेट्स क्या करेंगे? अरे डिसीजन तो इसी ने लेना है, क्यों अपना हीमोग्लोबिन कम करता है, जो मालिक बोले वो करे. एंड देन देयर यू लूज योर स्पाइन चली जाएगी, लेकिन पद्मश्री मिल जाएगा. हाँ, वो मिल सकता है, अवार्ड तो इसलिए मिल रहे हैं, सब बांटते हैं. तो आई एम आस्किंग अबाउट दिस, इज इट अ प्रॉब्लम और नॉट? एंड आई एम नॉट हियर bringing the sad story. I am also going to look at the solution. वो solution आप हैरान हो जाओगे जब solution सुनोगे. ये तो चाहिए नॉन नेगोशिएबल. ये सुनो, 8% कहीं से लाना है, 5 यहां से उठा लो, कोई दिक्कत नहीं. इसको भी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए. ये सुनो, इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, ये भी 5% चाहिए मुझे. ठीक है? पैस्चर भी चाहिए. नॉन नेगोशिएबल. नेगोशिएबल क्या है? ये इसमें 5% नहीं बढ़ाते. व्हाट इफ आई से कि इंडिया का एग्रीकल्चरल लैंड 58 की जगह -10 कर दो, 10 कम कर देते. ये तो बहुत गड़बड़ है सर, सबको खाना है. ट्रू और नॉट? माई प्रपोजल इज अ वेरी रेडिकल प्रपोजल, बट आई एम श्योर इट इज बेटर देन 8 बजे 8 बार थाली बजाना. आई विल स्टिल कंसिडर इट अ बेटर वन. यस, या गो करोना गो बोल के करोना भाग जाएगा. आई स्टिल कंसिडर, मतलब तो मैं कॉन्फिडेंट हो गया हूं कि इतनी ज्यादा बेवकूफी है मेरे आसपास, मुझे कोई टेंशन नहीं है. आई एम एब्सोल्युटली ओके विद इट. नाउ व्हाई एम आई गिविंग दिस रिडिकुलस प्रपोजिशन कि हमारे एग्रीकल्चर का 58% ऑफ द लैंड को हम 48 पे ले आए, विच सम ऑफ यू माइट फील कि यार ये तो किसानों के भी खिलाफ जा रहे हैं, हर एक चीज है, सब लैंड जा रहा है. आई वांट टू टेल यू, वर्ल्ड में इंडिया इज द ओनली कंट्री विच इज ब्लेस्ड विद सच हाई परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड. अपने टोटल लैंड एरिया का भाई 58% ऑफ द लैंड इज केपेबल ऑफ दिस. चाइना इज ओनली 30%. चाइना इतनी बड़ी कंट्री, उसका ओनली 30% लैंड इज फॉर एग्रीकल्चर. रशिया का 11%.
यूएस बिग एक्सपोर्टर 18-20%, 58%। लेकिन फूड सिक्योरिटी, अकेला बिहार अगर एग्रीकल्चर पे उतर आए, सो फूड नॉट फॉर इंडिया, फॉर एशिया है। एंड थिंक अबाउट द प्रोस्पेरिटी ऑफ द फार्मर ऑफ बिहार। सो इंडिया को लैंड ज्यादा बढ़ाना है, आपको क्लास ज्यादा करने से पास होगे या क्लास से ज्यादा निकालने से पास होगे? सो when we get such questions, when I'm interviewing the toppers, सर कितने घंटे से मैं पास हो जाऊंगा? घंटे से कोई पास नहीं होता है। True or not? It's not about hours of study. It's about how you do that. So India must be thankful, must be blessed that यार ये हमें एग्रीकल्चरल लैंड मिला है। True or not? तो मैं तो ये कह रहा हूं इंडिया को रादर देन, अगर एग्रीकल्चर, ये तो यार देखिए, पड़ोसी से जल के कुछ नहीं मिलेगा। जो आपके घर में सैलरी आती है उसी से बजट बनेगा ना। तो इंडिया की ये सैलरी है, इंडिया की ये कुंडली है, दिस इज अ वेरी गुड वन। एंड यू ऑल्सो टेल मी, ऑनेस्टली टेल मी अबाउट फॉरेस्ट, अबाउट एग्रीकल्चर. Is the agricultural community very inspired to stay in agriculture, or are they looking for moving out of agriculture? Moving out of agriculture. Did your economics teacher tell you that there is so much of disguised unemployment in agriculture? जो 2 लोग कर सकते हैं वहां 10 लोग, पूरी फैमिली वहां पर कर रही है. तो अगर हम एग्रीकल्चर को और प्रोडक्टिव बना दें, so these farm laws came and the government say किसान जो है, किसान came and protested against those farm laws. I think Indian farming requires a very big reform and the government was thinking in the right direction. Reforms तो चाहिए. But yes, probably it so happened that the consultative process was not followed that much and people felt कि हमारे जो interest हैं they are not considered. But I am saying the government was absolutely on the right track कि इंडिया का अगर कुछ होना है फूड सिक्योरिटी का, आपको लगता है सिर्फ ट्रेन बढ़ा देने से ट्रेन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? The efficiency that is required in the trains, that's what we are talking about. Let us talk about the same passengers. When they are traveling in Delhi Metro, they are taking care of it. And what they did to the trains of India during the Kumbh Mela, you can understand what kind of mindset is that. तो जब मैं आपसे ये ridiculous sounding proposition आपको दे रहा हूं कि एग्रीकल्चरल लैंड को नीचे ले जाओ, ठीक है, कहां लेकर जाओ, कहां पर लेकर जाएगा? अगर 10% कम भी कर दिया, 10% कम कौन कर दिया? जो आपका फैलो लैंड अदर देन करंट है, आपने 5-5 साल खाली छोड़ा हुआ है। क्यों छोड़ा हुआ है? इसका कुछ और कर सकते हैं? यस। उसके बाद कल्चरेबल वेस्ट लैंड, ये क्या है? वेस्ट है, अभी वेस्ट है। क्यों? क्योंकि इस पे कचरा वचरा सब पड़ा हुआ है इसमें से। और ये कितना परसेंट हमारे पास अवेलेबल है? 12%। बहुत है यार, लॉटरी है ये। 12%। मेरे पास तो 12 पड़ा हुआ है, इसका क्या करना है? इसको हटाते हैं। नाउ आई हैव टू ऑप्शंस, देयर वाज अ लैंड व्हिच वाज capable of agriculture, but for years of abuse, lot of garbage has been dumped, chemical pollutants have gone into that and everything. मैं चाहूं तो उसको हील करके, हेल्थ देकर, आई कैन ब्रिंग इट बैक टू यूज। अब आपको जो यहां पर चाहिए था, आप क्या चाहेंगे? कल्चरेबल वेस्टलैंड को हम किस में कन्वर्ट करें? एग्रीकल्चर में। आई एम सेइंग डू नॉट कन्वर्ट कल्चरेबल वेस्टलैंड इनटू एग्रीकल्चर। आई हैव अ रीजन फॉर दैट। हमारे एग्रीकल्चर में वैसे एफिशिएंसी कम है, यस और नो? अब मैं एग्रीकल्चर में वो लैंड जोड़ने जा रहा हूं जो लैंड इनहेरेंटली वीक है। ट्रू और नॉट? सो इंडिया को ओलंपिक्स में भी मेडल मिलते हैं और पैरालंपिक्स में भी मिलते हैं। पीपल विद सम डिसेबिलिटी, वेयर डू दे कम्पीट? पैरालंपिक्स। यस, उनको जबरदस्ती अगर ओलंपिक्स के में कराया जाए, दे वोंट बी एबल टू विन, यस और नो? कैन आई से दिस इज अ स्पेशल स्टेटस लैंड? ये अपने आप में इनहेरेंटली कमजोर हो गया है। इसको मारपीट कर हम इसमें क्या करेंगे? फर्टिलाइजर डालेंगे, सब कुछ डालेंगे, मुझे खाना लगाओ। इसकी जगह अगर हमने इसको यहां भेज दिया, कितना अच्छा हील होगा ये? विल हील फॉर गुड और नॉट? विल हील फॉर गुड। सो दैट्स वेयर आई एम लुकिंग एट। और कुछ तो इतना ज्यादा कमजोर होगा कि फॉरेस्ट भी नहीं आ सकता। सो माई सजेशन इज, यहां मॉल बनाओ, सिनेमा देखो, यस और नो? दे आर मेकिंग, आपके बैंगलोर में जितने भी अच्छे वाटर बॉडीज थे, उन सब को फ्लैट करके, रिक्लेम करके, वेटलैंड्स को, आपको वहां पर वो बन गया, आपके मॉल्स बन गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, योर लेजिस्लेटिव बिल्डिंग्स हैव बीन क्रिएटेड।
अरे यार ये वाला लैंड पे बनाओ ना। एम आई सेइंग किसान की भूमि को हाथ लगाओ? नहीं लगाओ। स्पेशली गुड फार्मिंग लैंड शुड नॉट बी टच्ड। इवन पॉलिटिशियंस विल अलाउ, नहीं यहाँ पर लैंड बेच दो क्योंकि फार्मर फार्मिंग छोड़ना चाहता है। Good land should not be touched because this is the core of our food security. But if the land is getting degraded, उस degraded में culturable wasteland के 12% अवेलेबल है आपके पास और यहाँ पर 5%, टोटल 17 इज अवेलेबल। 8 उधर से हो गया और इधर। हमारा तो काम बन गया कि नहीं बन गया? बस आपको थोड़ा सा रोमांस किसके लिए छोड़ना है? एनएसए। सबका मुंह बन गया था रे सर, खाना कैसे खाऊंगा? अरे तुम वैसे ही आजकल डाइटिंग कर रहे हो, शहर वाले तो इतना खा खा के मोटे हो गए हैं। ये सुनो, डाइटिंग कर रहे हो, अच्छा है, देश के लिए काम आएगी कि नहीं आएगी? उपवास रखो, गांधी जी भी रखते थे। यस, बाकी मुझे पता नहीं पॉलिटिशियन रखते कि नहीं रखते। 8 बजे तक क्या क्या करते हैं आई डोंट नो। 8 PM नाम की एक शराब भी है। 8 बजे 8 पैग 8 PM, बढ़िया सुना मैंने। 8 सुन के मुझे एकदम स्ट्राइक किया, 8 ही क्यों? हाँ जी। सो बिहार कैन प्रोड्यूस कॉर्न फॉर होल एशिया। अच्छी बात है, लगाओ तो सही। और जितने भी गोवंश के रक्षक हैं, आई रियली सी कैटल इन बैड सिचुएशन। यस, कैटल को पुचकारने से, पॉलिटिकल रैली में दिखाने से नहीं बनता, उनको खिलाने से, केयर करने से, उनके केस में एक्सीडेंट्स में। और शहरों में आई वॉन्ट टू टेल यू, देर आर पीपल हु आर सो इनसेंसिटिव टू एनिमल्स। अगर सड़क पर एक गाय या बैल बैठ गया, पीपल हु हैव नेवर बीन क्लोज टू एनिमल्स, दे डोंट नो उसको हटाना कैसे। पास तो जाते नहीं, डर लगता है, तो क्या करते हैं? पत्थर मारेंगे, लाठी मारेंगे, ये सुनो, पानी फेंकते हैं। यार पानी ने बहुत नुकसान किया, आप सोच नहीं सकते लोगों की क्रूएल्टी की हद क्या है। पानी फेंकते, जानवर नहीं हटता, खौलते गर्म पानी से तो हटेगा। I just went and I visited for some charity. I wished, my father's health was not good, so my wife said, let us do some donations. I told her, humans को donation देने के लिए बहुत है, let's go for animals. So we recently went to this animal shed to donate to the animals. So there was this बैल था, उसके ऊपर एसिड फेंका गया था so that it moves away. पूरा एसिड से, and this is how cruel people, what they are doing, and they're talking about like let's take care of our animals. होने को एक के पास प्राइवेट चिड़ियाघर भी होगा जहाँ endangered species मिल जाएंगी. That's the paradox of our country. And here we have human beings who don't have any chance of a meal, animals being ill-treated. So this is what I'm talking about, India's land use. And I'm saying, my question today to all of you is changing land use. So India's land use, did we see? Agriculture कितना है? 50% से ऊपर है. Forest कितना है? 30 से नीचे 25 है. Yes. और बचा हुआ जो built-up area है वो कितना बचा? जो भी हमारे पास बचा, अगर आपको याद नहीं है तो आप यहां से अभी देख लो, आपके पास फिगर्स मैंने कर दिए. मेक सेंस? ये कितना हुआ? 25%. ये कितना हो गया? 58%. 25, 58 is 73 gone. 73 gone तो कितना बचा? 27 बचना चाहिए. बचना चाहिए, हो रहा है कि नहीं ये मुझे पता नहीं. 953. अच्छा 8 मैंने इधर ले लिया था, तो ये 25 और 58 कितना होता है? अच्छा 83 होता है, सॉरी 83 एंड दिस. सो हमें कहां से कम कर सकते हैं चेंजिंग लैंड यूज में? डू यू गेट द आइडियाज? Do you get the idea? So idea is that we can make our agriculture more efficient, and the area in agriculture which is turning into wasteland, rather than pushing for it only back to agriculture, that wasteland can be put to uses. Pasture कितना अच्छा रहेगा यार उस पर. Think about it. आप अपने लिए क्रॉप्स उतना नहीं ग्रो कर सकते, मिनिमम इन्वेस्टमेंट पे पेस्चर्स ग्रो करिए. कर सकते कि नहीं? सो इंडिया हैज द लार्जेस्ट कैटल पॉपुलेशन. कहीं तो खिलाओगे, कैटल हो गया. और इंडिया में ट्रेडिशनली वी हैव दिस काइंड ऑफ एग्रीकल्चर वेयर एनिमल हस्बेंड्री इज अ पार्ट ऑफ इट. इंडिया इज द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर ऑल्सो. वी आर प्राउड ऑफ इट कि मिल्क प्रोड्यूसर. और ये भी बता दूं, मिल्क बाहर के लिए नहीं, अपने लिए ही है. हम ही पी जाते हैं, अपने को ही शॉर्टेज होना है.
यस और नो? सो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. और शिक्षा जो शेरनी का दूध है वो तो पी रहे हो, लेकिन उससे भर नहीं रहा है तुम्हारा. दैट्स देयर. Sorry to disturb you, sir. I read and memorized 5 year के culture PYQ, but I am unable to understand how to make cultures table and what is important. बेटा अब तो समय निकल गया यार कल्चर के टेबल बनाने का. तो पहली बात, 5 years के PYQ क्यों बोले थे? क्योंकि वो आएंगे दोबारा? नहीं, जस्ट टू टेल यू व्हाट द यूपीएससी डज. और कल्चर का एरिया तो है ना, दैट वी हैव टू डू. कल अगर टाइम मिलेगा तो मेरे कुछ टॉपर्स के वो हैं सम हैंड नोट्स, आई विल probably bring them to the class. ये कर सकता हूँ ऋषि. बाकी तो आई वुड अगेन से कि आपके पास कुछ आपके केजीएस की बुकलेट्स है ना कल्चर पे, उसमें से आइडेंटिफाई कर लो. बट सम क्रिस्प नोट्स जो मैं आपको दिखाता रहता हूँ वैसे आप बना सकते हो इफ इट हेल्प्स यू. इंडियन पीपल डोंट अलाउ हार्ड डिसीजंस. वी आर सेल्फिश. ओ माय गॉड. चलो ठीक है, सही कह रहे हो. इट इज एब्सोल्युटली फाइन. आई होप यू गॉट माई मैसेज. लैंड इज अ फाइनाइट रिसोर्स. And I also want to tell you people who are looking forward to becoming an IAS officer, ये सारे challenges आपके लिए हैं. Politician के लिए क्या challenges हैं उसके लिए छोड़ दीजिए आप. But you when you go into the job of a civil servant, I really respect civil servants job, the nature of it. वो आसान job नहीं है यार. उसमें कुछ लोग करप्ट निकल आए, कुछ लोग पोजीशन का फायदा उठाएं या फिर पॉलिटिशियंस को यू नो लाइक अपीज करें. वो सब तरह के हो सकते हैं. ब्लैक शीप विल ऑलवेज बी देयर. But I really feel that the country is being run on these strong shoulders. So आप जो काम करने जा रहे हैं वो बहुत चैलेंजिंग काम है, बहुत रिस्पेक्टेबल काम है. So that's what we are talking about. तो मॉक टेस्ट में नंबर बहुत कम आ रहे हैं. अभी तो हम ये काम कर रहे हैं, अभी मुझे इस सब में मत खींचो. किसी ने बोला कि वो है तो आई डू अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा टेस्ट में हेल्प की जानी चाहिए. अब मॉक टेस्ट में कैसे होगा वो देखेंगे. बिहार कैन प्रोड्यूस कॉर्न हो गया सर. कैन यू गिव सम गाइडेंस फॉर 2026? दीप्ति फिर कभी टाइम मिलेगा आई विल कम फॉर दैट. कुछ कॉन्फ्रेंसेज या कुछ सेमिनार या यूट्यूब पे सेशंस हम कर देते हैं. वी विल अदरवाइज नॉट बी एबल टू मीट द टारगेट ऑफ द क्लास. सर बट इट विल कॉज हंगर इफ वी रिड्यूस 10%. अंकित बोल रहा है. अंकित मैं वही कह रहा हूं, 10% रिड्यूस नहीं किया. देखो क्या किया, कौन से वाले को लिया. अभी भी अंकित जो तुमने खाना खाया ना बेटा वो इन्होंने दिया है, ये तो एक्स्ट्रा है. तो अभी समझाया आप लोगों को. वर्ल्ड में इंडिया की कहीं पर भी क्रॉप यील्ड्स आर 50% ऑफ द यील्ड्स दैट आर इन चाइना एंड जापान. चाइना और जापान की जो क्रॉप यील्ड्स हैं उनका हम आधा प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम द सेम पीस ऑफ लैंड. वी प्रोड्यूस हाफ. सो पोटेंशियल वहां पर है. ठीक है. सो जस्ट इमेजिन, डज इट मेक सेंस टू हैव 10 चिल्ड्रन विद एवरेज इंटेलेक्ट? 2 बच्चे विद शार्प इंटेलेक्ट इज बेटर और नॉट? 2 बच्चों पे काम कर लो. नहीं, सबकी मिला के ना समझदारी बन जाएगी. अरे सब ये सुनो, हम 2 हमारे 2, और अगर रोक सकते हो तो रोक दो. दैट्स इट. अब उसमें मतलब मैं तो देश की बात कर रहा हूं, बाकी तुम्हारी श्रद्धा है कि नहीं सर मेरा एवरेज इंटेलेक्ट है सर, मेरे बच्चे भी एवरेज होंगे सर, लेकिन मैं ज्यादा चाहता हूं सर ऐसे 20 करेंगे फिर ऐड करेंगे. ये जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सोच है इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन करो, थोड़ा चेंज कर लो. तो हंगर से कोई नहीं मरने वाला. जैसा मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं. बिहार लैंड हैज अ ह्यूज पोटेंशियल टू प्रोड्यूस वेरी हाई यील्ड्स. दोज एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स आर वेटिंग टू हैपन इन बिहार. दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. सिद्धांत कह रहा सर कितने लेक्चर रह रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी के? बस खत्म होने को है, कुछ 8 या 10 लेक्चर और हैं. अभी हम क्या कर रहे हैं, व्हाट आर वी डूइंग, ये रिसोर्सेज हो जाएगा. रिसोर्सेज के बाद इंडस्ट्री में जाएंगे, कुछ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट में जाएंगे. दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू लुक एट. अगर कुछ डेमोग्राफिक डेटा होगा विच आई डोंट एक्सपेक्ट क्वेश्चन टू कम बिकॉज वो सेंसस नहीं बदला है, बट डेमोग्राफिक डेटा आपको सोशल इश्यूज में भी पढ़ाया गया. पॉपुलेशन डेंसिटी, सेक्स रेशियो, लिटरेसी, ऐसा कुछ पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया? एक तो तुम लोगों को कुछ भी याद नहीं आता. मेरा वाला भी एरिया कह दो कब पढ़ा है यार. मैं भी फालतू में किससे पूछ रहा हूं, मुझे समझ में आना चाहिए. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि वो थोड़ा बहुत बचेगा. सो दैट्स देयर फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टूडेंट. आपके लिए तो डिटेल में है डेमोग्राफी एंड ऑल दोस थिंग्स, बट यहां पर हम उनमें सिर्फ टच अपॉन करते हैं. इज एवरीवन ओके विद लैंड रिसोर्स?
इसलिए आपको कहा ये प्रीलिम्स में नहीं पूछेगा ऐसा कुछ, मेंस में पूछेगा, दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट. एंड डज द लैंड यूज ऑफ इंडिया नीड टू चेंज? Yes. Why? To make it more efficient. Number one, to make it more efficient. Second is our population is changing. Yes or no? Population is changing. Its demands for built up area is increasing. And agriculture में. And I also want to tell you, यूरोप में लैंड ही नहीं है. कंट्रीज के पास लैंड ही नहीं है. तो उन्होंने कैसे किया? उनका खाना कहां से आ रहा है? They have outsourced it. सोचिए, लैंड भी इंडिया का यूज होता है, पानी भी इंडिया का यूज होता है, पोल्यूट भी इंडिया में होता है, खाना उनके पास पहुंच जाता है. वी आर हैप्पी, दिस इज वर्चुअल सोर्सिंग. बट कैन अ कंट्री ऑफ द साइज ऑफ इंडिया डू दैट? नो, वी कैन नॉट डू दैट. सो मुझे लगता है 50 प्लस लैंड की जगह, एनएसए या एग्रीकल्चर की जगह, अगर 50 में भी हम कंट्रोल कर लें, 12 नहीं भी लें, 10 में से अगर हम 8 भी ले लें तो भी चलेगा. गेट दैट? सो थिंक अबाउट इट. और क्लास में बैठे बैठे लैंड यूज पॉलिसी चेंज नहीं होती है, बट आई वॉन्टेड टू मेक यू अवेयर ऑफ दैट. यस, मेगा बोल दिए, बट सर इट इज टू मच डिफिकल्ट टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर. बेटे यही तो आसान है. थिंक अबाउट इट. भारत के किसान के एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में कोई दिक्कत है? प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या लगेगा? मैं कह रहा हूं एनजीओ करवा दे रही हैं. आजकल तो लोग अर्बन गार्डनिंग तक कर रहे हैं, अपना टमाटर खुद ही उगा रहे हैं घर में. यस और नो? तो ऐसी बातें मत करो. जो पॉसिबल है उसे तो समझो. ये वो बात हो गई सर स्टूडेंट की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना मुश्किल है. अभी आपने अपनी कैपेसिटी नहीं देखी मेगा जी. दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. सर अदर कंट्रीज आर एबल टू प्रोड्यूस मोर देन इंडिया. इज आवर लैंड लेस प्रोडक्टिव? नो नो, लैंड इज नॉट लेस प्रोडक्टिव. वी आर अनेबल टू एक्सट्रैक्ट दैट मच. दैट इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ एफिशिएंसी. इंडिया का जो एफिशिएंसी है, मैं आपको एक और बात बताऊं, लैंड कितनी बार यूज हो सकता है साल में अगर खरीफ और रबी क्रॉप है तो? अच्छा एग्रीकल्चर भी तो रह गया आपका, वो भी करवाना है. हाँ, लैंड कितनी बार यूज हो सकता है? 2 बार. 2 फसलें हैं, 2 बार हो सकता है. एक्सेप्शनल सिचुएशन में कितना? 3 बार भी हो सकता है. इंडिया का अगर क्रॉपिंग इंटेंसिटी देखें, आपको इकोनॉमिक्स में बताया होगा 135 है. 135 मींस ओनली 1.35. So only 35% of India's land is used 2 times a year. आप सोचो 65% of the land तो twice भी यूज नहीं होता. क्यों नहीं होता है? सोच के देखिए, वहीं पर है. I am talking about that. So it's like your graduation. ठीक है, बहुत से लोग मेरे पास आते हैं ऑनलाइन ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन. आपको 6 महीने का सेमेस्टर होता है. आप 6 महीने में एग्जाम दे सकते हो उस यूनिवर्सिटी के. ये सुनो, आप वो देते ही नहीं हो. फिर आखिर में क्या होता है साल के एंड में? देन यू आर स्टक विथ टू मेनी पेपर्स टू बी गिवन. सो दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो इज द डेटा ऑफ 2015 इनफ और वी हैव टू ऐड द लेटेस्ट टेबल? शिवांक, ये देखो, ये खाली बैठा हुआ बस लेटेस्ट टेबल. भाई चेंज नहीं होता है ये इतना ज्यादा, इसीलिए तो दिया, इसीलिए ट्रेंड करवाए. ये तो ऐसे कह रहे हैं जैसे याद कर लो. शिवांक, ये पक्का है कि तुम 2025 का नहीं दे रहे हो, तुमने एग्जाम की तैयारी में पीवाईक्यू भी नहीं देखे. जिसको ये देखकर समझ में आया, ओहो अब तो 2025 का लगाऊंगा, चेक कर लो. वो तो भी मैंने आपके साथ लैंड यूज डेटा शेयर नहीं किया. ऑप्शनल वालों के साथ तो पूरा करना पड़ता है. पूरे टेबल्स होते हैं 1950 से अभी तक के, मोर और लेस सेम ही रहता है. अभी इतनी देर से बताया, इसको यही समझ में आया डेटा कहां से लेना है, क्योंकि मुझे तो 2070 में देना है, तो मैं वो करूंगा. ये तो तब देगा ना जब इंडिया डेवलप्ड हो चुका होगा. इसने तो वो वाली पी है. ये पुड़िया मत लिया करो यार, क्लास से पहले बिल्कुल पुड़िया नहीं लो यार. सर कोल डजंट फाउंड इन नर्मदा. ऐसी कैसी इंग्लिश बोल दो, कोल डजंट फाउंड इन नर्मदा बिकॉज वोल्केनिक इरप्शन ड्यूरिंग रीयूनियन, बट रिफ्टिंग हैपेंड आफ्टर दैट. किसने कहा रिफ्टिंग हैपेंड आफ्टर दैट? मैंने तो आपको रिफ्टिंग बताइए बेटिया. अंजलि जी सॉरी है, आप जरा चेक कर लो वहां पे टाइमलाइन. गलत कह रहे हो, रिफ्टिंग बाद में नहीं हो बेटिया, पहले हो गई थी. रिफ्टिंग कब हो गई थी? जब पैंजिया टूटा 200 मिलियन ईयर्स अगो. सर मुझे याद नहीं, तुम्हें वैसे याद नहीं रहता, इसलिए अंजलि को भी बता रहा हूं. और वोल्केनो कब निकला? 75 to 50 मिलियन. तो अंजलि देखो, गलत गलत इल्जाम लगाओगी तो गलत हो जाएगा, जाके चेक करो. और ये इंग्लिश पे काम कर लो बेटिया, नहीं तो मेंस में ना, माना मैं इसको ऐसे बोल के बहुत बुरा बन रहा हूँ कि ऐसे टीचर ने मुझे बोल दिया मेरी इंग्लिश वीक है, बट मेरा काम है ना बताना, क्योंकि आपका सपना उस पर है. प्लीज वर्क ऑन योर लैंग्वेज, प्लीज डोंट फील बैड अबाउट इट. सर 3 times इन बिहार. मैंने कहा पूरे इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे इंडिया की अभी 135 है. उसको क्रॉपिंग इंटेंसिटी बोलते हैं. इंडिया हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल ऑफ ग्रोइंग मोर. ईल्ड्स कहाँ पर ज्यादा है? पंजाब हरियाणा में ज्यादा है, पंजाब हरियाणा में ज्यादा है.
और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, कैन आई ऑल्सो से द फूड हैबिट्स ऑफ इंडियंस आर चेंजिंग? यस और नो? तो क्यों सिर्फ गेहूं और अनाज ही पैदा करना है जब लोग यहाँ पर शहरों में पॉपकॉर्न ढूंढ रहे हैं? ट्रू और नॉट? और क्या ढूंढ रहा है? न्यूट्री चॉइस रागी बिस्किट, महंगा वाला खाएगा कि मोटा ना हो जाओ। अबे खा के मोटा ही होता है, वो भी खाकर पतला होना चाहता है और खाकर पतला होना चाहता है। रागी खाऊंगा तो अरे इतना भरा हुआ है, पहले पहले पूरा गेहूं भर चुका है, उसके ऊपर रागी का तड़का लगा रहा है, कुछ नहीं होगा वो। ठीक है? सो आई एम सेइंग चेंजिंग दिस थिंग इज हैपनिंग। और खासकर मैं आपको बताना चाहता हूं इंडिया की जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है, विद ग्रोइंग इनकम लेवल्स, people from middle class would prefer to options like milk, eggs, pulses. ठीक है? मिल्क के लिए क्या चाहिए? पैस्चर नहीं है, इसलिए कह रहा हूं मिल्क की डिमांड हमेशा ही रहेगी। ठीक है? डिप्रेशन में भी तुम मिल्क ही पीने वाले हो यार, एग्जाम में दिल माँ कहती बेटा दूध पी ले, दिमाग आएगा। ठीक है? दूसरा, प्रोटीन के लिए सस्ता सुंदर टिकाऊ अंडा, अंडे के लिए क्या लगेगा? चूजा लगेगा, चूजों के लिए भी दाना लगेगा। ये सुनो, और वी आर टॉकिंग अबाउट दोज ड्राई लैंड। ये जो आपके पल्सेस एंड ऑयल सीड्स हैं, ये कहां पर होते हैं? ड्राई लैंड में होते हैं। समबडी सेड सर बिहार में 3 बार होता है, मैं मान रहा हूं, लेकिन अब कौन सी क्रॉप्स चाहिए? ड्राई जोन क्रॉप्स चाहिए, जहां एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन पहुंचा नहीं, उसको भी मैं लेकर आऊंगा एग्रीकल्चर क्लास में, विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। सो डू यू गेट दैट? सो दैट इज गोइंग टू हैपन। ना तो हम भूखे मरेंगे, इंडिया के किसान में इतना दम है, सबको खिला सकता है। इंडिया के लैंड में इतना दम है कि it is so productive. Only thing is we need to be able to extract the best out of it. We also need to see that the agricultural output that we are looking at, newer crops, newer food is being demanded. आजकल लोग मॉल में बर्गर लेते हैं, बर्गर में जो नॉन वेज हैं वो चिकन खा रहे हैं, जो वेज हैं वो पनीर वाला बर्गर खा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब सिर्फ दाल रोटी से नहीं चल रहा है। दाल रोटी जब मम्मा देती हैं तो ऐसे मुंह बनता है कि भाई आईएएस बनने वाला हूँ, कुछ तो दे दो। ट्रू और नॉट? So that's what we are talking about. So people, their food habits are changing. We need to look at our agriculture also, redefine it. This is a very good opportunity to make it not only for us, world over. और इसी में हम ऑर्गेनिक की भी बात कर रहे हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें वो भी कर रखी हैं, इतना पोल्यूटेंट्स के साथ, पेस्टिसाइड्स के साथ, वी कैन वेरी बिग चेंज कैन बी मेड। एंड आई ऑल्सो नीड टू मेक इट क्लियर कि इंडिया के जितने भी सपने हैं अबाउट इंक्रीजिंग जीडीपी एंड ऑल दोज थिंग्स, किसान अगर उसमें नहीं है तो वो नहीं आने वाला, वो सपने का सपना ही रह जाएगा। और सच बता रहा हूँ, वो जो काऊ की बात होती है, काऊ जब तक उसमें नहीं है एज अ कैटल और उसका ख्याल नहीं रखा जा रहा है इंडिया के लाइफ स्टॉक का, सो इंडिया नहीं पहुंचने वाला। इंडिया के लोगों की जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो नहीं होने वाले। सो दैट वर्शिप फॉर काऊ एंड लाइफ स्टॉक अगर ट्रूली करनी है, सो वी रियली नीड टू मेक श्योर दैट दे हैव एडिक्वेट वाटर, फूड, and they become a very big part of the rural economy. Do we get that? So ये मेरी तरफ से भाषण खत्म। अब हम आ गए पानी पर, water resources. Do we get that? Water resources. So एक तो हमने rivers की बात कर ली, we have already talked about rivers, but now we are talking about water resources. Again, आज जब रिसोर्स पढ़ा रहा हूँ, आज सब बजट में चल रहा है, everything is going in budget. लैंड कैसे किया? इतना अवेलेबल, हाउ यू यूजिंग इट? सो नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट टुडे वाटर एज बजट, कि हमारे पास कितना पानी अवेलेबल है। ठीक है? सो फॉर दैट आई हैव सर्टेन थिंग्स व्हिच आई विल रीड आउट। मैं बहुत लिख नहीं पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ सम ट्रबल विद मी राइटिंग। सो वाटर एज अ रिसोर्स, JF Kennedy once said that anyone who can solve the problems of water will be worthy of 2 Nobel Prizes, one for peace and one for science. Because they believe that आगे का भविष्य का जो वॉर होगा वो यूक्रेन के रिसोर्सेज के लिए नहीं होगा, वो पानी के लिए होगा। सो पानी से यू कैन अवॉइड द वॉर, और दूसरा साइंस भी तो होगा उसका सोल्यूशन निकालने के लिए, वाटर शॉर्टेज का सोल्यूशन, दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो दिस इज द डेटा विच आई वांट। कुछ डेटा मैं हाईलाइट करूंगा, ओनली दैट इज टू बी नोटेड डाउन। गेट दैट? तो एरिया ऑफ द कंट्री 2.4% ऑफ द वर्ल्ड, प्लीज राइट डाउन। इंडिया का एरिया कितना है? 2.4%। पॉपुलेशन कितना है? 17-18% ऑफ वर्ल्ड। यस। और वाटर कितना है? ओनली 4%। तो बहुत नाइंसाफी हो गया कि नहीं?
So because of this mismatch, huge population and water resources are only 4%. So for increasing land productivity, there will be use of fertilizers. This will cause environmental problem. तो अभय सिंह जी, इस पर बहुत रिसर्च हो चुकी है. इंडिया के लैंड की प्रोडक्टिविटी में ज़रूरी नहीं है कि केमिकल फर्टिलाइज़र ही डले. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट. सो अभय सिंह जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लासेस एग्रीकल्चर की आएंगी तब भी बता दूंगा. और भी चीज़ें हैं ना. अभी आप कृषि कैसे जानते हो? जैसे आपने अपने नाम रखा तुक्केबाज, तो तुक्के से जानते हो. मैं तुक्के से नहीं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाऊंगा और भी तरह से पढ़ाऊंगा. ठीक है? हाँ जी, ये लिख लिया. ये तो कॉमन है, ये आप अपने आंसर्स में भी यूज कर सकते हैं कि ह्यूज कंट्री विद अ ह्यूज पॉपुलेशन बट लिमिटेड रिसोर्स. अब 4% ये तो इनकम्प्लीट होगा कि नहीं होगा? 4% है, दिस इज वेरी लो. बट एज आई जस्ट टोल्ड यू दैट इंडियाज एग्रीकल्चरल लैंड इज अ ब्लेसिंग. ये सुनो, इंडिया के पास कितना है? बहुत सारा एग्रीकल्चरल लैंड है. अब मैं आपको बताना चाहता हूं, इंडिया के पास रेनफॉल इज अ ब्लेसिंग. रेनफॉल इज अ ब्लेसिंग. एवरेज एनुअल रेनफॉल इंडिया में कितनी आती है? 116 सेंटीमीटर. कितनी? 116 सेंटीमीटर. वर्ल्ड की एवरेज 111 सेंटीमीटर. आई डोंट नो वेदर यू अंडरस्टूड और नॉट. इंडिया 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया है कि नहीं? इंडिया के 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया को हर साल अगर एक टैंक मान के चला जाए, इफ वी कंसिडर इंडिया अ टैंक, एवरी ईयर इन दिस टैंक 1.16 मीटर का पानी आता है. दैट्स ह्यूज. डू यू गेट दैट? 1 मीटर सोच के देखिए, 1 मीटर की हाइट. पूरा इंडिया, कंसिडर इंडिया एज अ होल टैंक ऑफ 32 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और उसमें कितना पानी भरता है? ये ब्लेसिंग है, दुनिया में इतना पानी नहीं है. तो ये जो हमें मिल रहा है, अगर इसको सही से यूज कर लेंगे तो हमारी वाटर वॉज हट सकती कि नहीं? दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू. सो आज हमारा जो बजट है, बजट में हमें कितना पानी मिल रहा है? इंडिया को 116 सेंटीमीटर का पानी मिल रहा है. कितने में? होल ऑफ इंडिया. अब ये कितना मैंने आपको बताया? 32 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. वो क्या है? एरिया इनटू हाइट. क्या बनता है? वॉल्यूम. वॉल्यूम बनता है. कितना वॉल्यूम है वो मेरे नेक्स्ट टेबल में मैंने आपके लिए कैलकुलेट करके बना दिया कि वो कितना वॉल्यूम है. 4000 BCM. प्लीज राइट डाउन. इंडिया रिसीव्स, सभी लोग वहीं पे जहां पे डेटा लिख रहे हो, इंडिया रिसीव्स 116 सेंटीमीटर्स of annual rainfall. India receives 116 centimeters of annual rainfall, which amounts to 4,000, which amounts to 4,000 BCM. What is BCM? बिलियन क्यूबिक मीटर्स. ये यूनिट है पानी को नापने की. कितनी? BCM. कहीं पर भी कोई आंसर लिखना हो, मजे से यूज करो. सेंट्रल वाटर कमीशन का डेटा है. कितना मिलता है? 4000 BCM. कैसे कैलकुलेट हुआ? 32 3.2 इंटू 1.16 करोगे तो 400 के कुछ करीब आएगा. दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. डू वी गेट दैट? आर वी ओके विद दैट? अब ये तो अच्छी बात हो गई. नाउ आई कम टू द सैड पार्ट ऑफ इट. Sad part is that 75% of this water, 4000 का 75 is
3000, इतना मैथ्स तो सी सेट आ रहा है ना. 3000 BCM, which is 75%, will come in 4 months. ये प्रॉब्लम है. वो जो पानी है, so please write down further. However, the problem lies in the fact that this water is not uniformly available both spatially and temporally. कुछ जगह पे मिलता है, कुछ जगह नहीं मिलता. Spatially, SPATIALLY, both spatially and temporally. In fact, 3000 BCM, 75% is received in the 4 monsoon months. 4 महीने में कितना मिल जाता है? 3000 BCM. अब ऐसे ही मैंने आपको उसमें भी बताया था, when I was telling you climate. आज क्या दे रहा हूं? आज डेटा दे रहा हूं. Today we are looking at it in terms of data. So there also I told you, I gave you this example. Someone is getting a monthly salary and someone is getting एक ही बार मिल रहा है. तो ध्यान से रखना चाहिए कि नहीं. ये 3000 BCM क्या करते हैं? They cause floods. वहां हम मैनेज नहीं करते हैं और जो बचा हुआ है उसमें हम फंसते हैं. तो बचा कितना है? 1000 बच जाता है. ठीक है. अच्छा, ये जो पानी आ रहा है, all the water that comes, 4000 BCM, all that come, is it available to us or will it evaporate also? Will it percolate also? Yes. So please write down 4000 is equal to 2131 plus 1869. 4000 is equal to 2131 plus 1869. 2131 क्या है? उसके नीचे एरो बना के लिखो, evaporation and soil water. Evaporation and soil water. 2131 evaporation यानी एटमॉस्फेयर में चला गया. सॉइल वाटर थ्रू परकोलेशन. और कितना बचा? 18. ये कहां पर है? ये रिवर्स में आ गया. तो पूरा 4000 का ब्रेकअप भी दे रहा हूं. तो सॉइल और मॉइस्चर वाले को तो हम नहीं पकड़ रहे, इसको रोकना है कहीं पर. और इज दिस इंपॉर्टेंट? ये जाएगा, ये वाटर साइकिल में बनेगा. वी नीड इट, यस और नो? तो दिस इज गुड. ये हमारा सॉइल मॉइस्चर बनेगा. वी नीड इट फॉर आवर क्रॉप्स ऑल्सो. अच्छा, इसको हाथ नहीं लगाना है, लेट्स लीव इट. अब हमारे लिए पानी जो अवेलेबल है वो कितना बचा? 1869. Now the issue is this 1869 that water is there, it will either go towards surface or towards groundwater. क्योंकि हमें तो दो जगह से मिलता है ना. ये कहां से मिलेगा? वेल. और ये क्या मिला? सरफेस वाटर. ठीक है. 1869 समझ में आया? फिगर्स, टेबल्स याद करना मुश्किल है, बट आई वांट टू मेक इट इजी फॉर यू. वी आर 32 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. 1.16 से उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट अराउंड 4000 BCM आ जाएगा. ठीक है. यूनिट्स का जब कन्वर्ट करते हैं तो बिलियन क्यूबिक मीटर्स में आ जाएगा, जब किलोमीटर्स को मीटर्स में करेंगे. सो दैट्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन एंड वी आर गोइंग टू गेट दिस. अब उस 4000 में से 3000 एक तो टेम्पोरल बता दिया आपको, अब मैं स्पेशल बता रहा हूं. मोस्ट ऑफ इट विल इवापोरेट और गो इनटू द सॉइल. ये हमारे पास बचा है. ठीक है. नेक्स्ट लेट अस गो इनटू दिस. आउट ऑफ दिस वाटर, ये जो 1869 है, हम सारा यूज नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? रिवर का सारा पानी, कुछ पानी रिवर के आसपास परकुलेट हो रहा होगा. मेनी थिंग्स आर गोइंग टू हैपन. सो दैट्स व्हाट वी आर talking about. So 1123 is the estimated utilizable water resource. Out of these two, out of this, how much can we use? 1123 is the estimable
utilizable estimated utilizable water. All water in the river can also not be used. रिवर का सारा पानी नहीं यूज हो सकता है, और जो भी पानी सरफेस पे जा रहा है ग्राउंड वाटर में, कुछ ग्राउंड वाटर भी हम यूज नहीं कर पाते. सो 1869 में से भी कट के अब कितना आ रहा है हमारे पास, इसमें सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर, दैट डेटा इज 690 एंड 433. 690 एंड 433. ये डेटा याद करना है, एक बार फिर से देख लो. Are we done with this? ये याद हो जाएगा. This data has to be remembered. So we're talking about water resources. Now comes the issue, are the water resources sufficient or not? ठीक है, so please write down the water resources. ये data हो गया, data aside. Now we are looking at water resources of India. Water resources of India are finite. Water resources of India are finite, yes, and as the demand increases, the pressure on the water resources further increases. According to the international norms, a country is categorized as water stressed when the per capita availability, a country is classified as water stressed when the per capita availability of water is less than 1700 million cube per capita. 1700 मीटर क्यूब पर कैपिटा से कम होगा तो कंट्री क्या कहलाएगी, स्ट्रेस्ड. इंडिया में कितना है, 1990 में इंडिया में 2309 था. वॉज इंडिया वाटर स्ट्रेस्ड? नो. कितना होना चाहिए वाटर स्ट्रेस के लिए? 2001, जब जिसके आसपास आप लोग पैदा हुए. यू वर बोर्न इन अ वाटर सफिशिएंट कंट्री. ठीक है, अभी 2025 चल रहा है, कितना हो गया है? ये प्रोजेक्टेड था, एक्चुअल अभी डेटा आएगा. एक्चुअल डेटा अवेटेड था. हम वाटर स्ट्रेस्ड हैं. यू वर बोर्न इन अ वाटर सफिशिएंट कंट्री, वी हैव रीच्ड वाटर स्ट्रेस. वाटर स्ट्रेस में आ गए हैं एंड बाय 2050 हम कितना हो जाएंगे, 1191. ये सुनो, 2010 में कितना था? 2010 में ही हम स्ट्रेस हो गए थे. That's what we are talking about. और 1991 में 1951 एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस सोचो कितना था, पानी पानी. इमेजिन 1700, 3 times more था, 3 times more. So should we blame climate change on this? Should we blame climate change on this? To certain extent I can. Can I say
that India had a water availability of 5200, वहां लिख भी लो, at the time of independence we were 5200. We have come down below the international norm, 1700 से नीचे आ गया है. And I also want to tell you, we were born in a country जहां पानी के लिए पैसा नहीं देना पड़ता था. पानी आप किसी के घर में भी पी लोगे. True or not? अब पानी के लिए पैसा तो देना पड़ता है. This is a normal understanding. नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग कि नॉर्मल होटल वाला भी पूछता है सादा पानी दूं या बोतल में लोगे. यस, बोतल में बोतल लेंगे यार, पानी तो सादे दे दे, कोई टेंशन नहीं. ट्रू, दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. सो दैट्स वन थिंग व्हिच आई वांट टू टेल यू. यू वर बोर्न इन अ कंट्री दैट हैड अ व्हिच कल्चर? बॉटल वाटर कल्चर. आई वाज बोर्न व्हेन देयर वाज नो बॉटल वाटर. तो पानी मतलब कहीं पर भी नल होगा वो पानी है, रेलवे स्टेशन पे नल होगा वो पानी है, मोहल्ले में नल होगा वो पानी है, क्रिकेट फील्ड में जो पाइप लगा हुआ है वो भी पानी है, उसे भी पी सकते हैं. आज की डेट में कोई पानी पीने से आपका आखिरी पानी हो सकता है. ट्रू और नॉट? नदी साफ थी वो अलग बात, नदी के लिए मैंने कुछ नहीं बोला है, उसके लिए तो सीपीसीबी ने भी कह दिया गलती हो गई थी, पानी साफ था. So that's what we are looking at. I was a little taken aback in 2021 when we had to pay for air. जब कोविड में हमने सिलेंडर खरीदे. आई वोंट बी सरप्राइज 2050 में जो जनरेशन पैदा होगी वो एयर खरीद के ही पैदा होगी. वहां पे सिलेंडर्स के साथ पैदा होंगे. ये जो फ्यूचर में मूवीज दिखाई जाती हैं, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट, विच विल नॉट बी अ स्ट्रेंज थिंग. पानी खरीद के पीना मतलब पानी के प्याऊ हुआ करते थे यार. वी कांट इवन थिंक ऑफ बाइंग वाटर. पानी खरीदने का मतलब ही नहीं था. फिर आई थिंक 90s 80s में 90s में आई स्टार्टेड सीइंग पानी, वो ठंडा करने के लिए जो मशीन आती थी, 10 पैसे का पानी वो एक गिलास दिया करता था. दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. As human beings, population is increasing. So when we are talking about population, this has caused one very big problem. Do we get that? So इंडिया के रिसोर्सेज मैंने आपको बता दिए, ये भी बता दिया करंट स्टैंडिंग क्या है. वी हैव गॉन इनटू वाटर डेफिसिट. यस और नो? सर अर्थ भी मार्स बन जाएगा? नहीं, अर्थ हैज इनफ वाटर. अर्थ हैज इनफ वाटर. तुम हम पानी की कमी एक दूसरे को मारेंगे वो अलग बात. Do we get that? So पानी के लिए water wars. That's why I started my class with that water wars are going to be imminent. अब जब आप सोच रहे हो चाइना डैम बना रहा है तो वो भी तो वाटर रिसोर्सेज पे फाइट होगी कि नहीं होगी? अभी तो सिर्फ बात होती है सूखे पर. बट व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट कंट्रीज कंट्रोलिंग द वाटर अप स्ट्रीम रिवर कंट्रीज, राइपेरियन जिसको कहते हैं, अपर राइपेरियन, लोअर राइपेरियन. आपको लगता है रिवर डिस्प्यूट्स इन इंडिया आर गोइंग टू ईज ऑफ इन फ्यूचर? दे आर फर्दर गोइंग टू बिकम वेस्टेड. यस और नो? दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. चलिए, ये भी हो गया. एक और डेटा था मेरे पास आपके लिए, सरफेस वाटर. सो लेट्स टेक, प्लीज गिव द हेडिंग सरफेस वाटर रिसोर्सेस. ये तो मैंने आपको बता दिया दो तरह के हो सकते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सरफेस वाटर रिसोर्सेस. सरफेस वाटर रिसोर्सेस, देयर आर फोर मेजर sources of surface water resources. There are four major surface water resources: river, lakes, ponds and tanks. River, lakes, ponds and tanks. Get that? However, due to topographic, hydrological and other constraints, due to topographic, hydrological and other constraints, all the water in these four sources cannot be completely used. And only 690 BCM, billion cubic meter, BCM, is available as annual utilizable water
is available as annual utilizable surface water. Yes, it is projected that India's demand for surface water resources in 2025 is likely to be 1093 BCM. 1093 BCM. ठीक है, 25 आ गए। ये तो रिपोर्ट में प्रोजेक्टेड था, आज तो मैं 25 में क्लास ले रहा हूं। तो मुझे एक बात बताओ, सेम प्रॉब्लम एज वी डिड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ टुडेज क्लास, लैंड सीमित है, डिमांड ज्यादा है, यस और नो? लैंड कितना है, वाटर कितना है 634 और डिमांड कितना है 1093। कोई तो प्यासा सोएगा। Do we have people who don't have access to water? Do we have cattle who don't have access to water? We have vegetation which doesn't have access to water. Are our forests getting degraded because of that? Is our land getting degraded because of that? Are the rivers and the ecosystems dying because of that? और उसमें क्या कर रहा है पानी की बॉटल कंपनी, उस पानी को करके खरीद रहा है। ठीक है, ये तो मैंने आपको प्रॉब्लम बता दी, आज डेटा दे रहा हूं। बिकॉज व्हेन यू गो इनटू वेरियस आर्टिकल्स, डेटा कहां से लाओगे, एक ही जगह पे सारा डेटा मिल रहा है, एंड दिस इज अ वैलिड डेटा, यू कैन यूज इट। नाउ वी हैव कम टू द डिबेट। पानी की मांग ज्यादा है, पानी कम है, क्या करें, जल्दी बताओ। 690 वर्सेस 1093, इसकी बात हो रही है। सरफेस वाटर अवेलेबल कितना है 690 BCM, रिक्वायर्ड कितना है, ठीक है। अपनी तैयारी करने के लिए कितने दिन चाहिए, 5 महीने हैं, कितने 2 महीने, ऐसी स्थिति चल रही, क्या करें, व्हाट डू वी डू। सेम थिंग फॉरेस्ट का भी था, फॉरेस्ट में भी तो ये खेल रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। फॉरेस्ट में हमने क्या कहा, मार पीट कर 23.5 प्लस 1.5 करके हमने 25 किया हुआ, रिक्वायर्ड कितना है 33। कहां से लाऊं पता नहीं, कहां से लाऊं पता नहीं। सो व्हाट डू वी डू, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, जल्दी बताइए। आज जो भी क्लास है दिस इज अबाउट थिंकिंग। पिछले 5 साल के मेंस देख लो, जीएस पेपर 1 में, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 3, हर एक साल में एक क्वेश्चन जरूर आया वाटर को लेकर, लाइक अ मेंस स्टैटिक क्वेश्चन, ये आएगा ही आएगा। तो क्या करें, रेन वाटर का हार्वेस्ट तुमने कभी किया, तुम्हें पता कोई कर रहा है तुम्हारे आसपास, फिर कैसे होगा। हाँ जी, 14 साल पहले क्या हुआ था, साइलेंस। 14 साल पहले देश आजाद हो गया था, तो कंगना ने कोई तारीख बताई थी ना, क्या था, हाँ सॉरी, हाँ सॉरी, मैं ध्यान नहीं रहा ना इसलिए। साइलेंस साइलेंस, आ 14 साल पहले थी ये न्यूज छोड़ दो, तुम आज 14 साल पहले तुम ऐसे न्यूज पढ़ भी नहीं, तो मजबूरी में आज पढ़ दो। सो ऑप्शन देखते हैं हमारे पास क्या है ऑप्शन, और ये हम पहले भी बात कर चुके हैं मेरे ख्याल से। हाइड्रोस्फीयर में मैंने बात की है कि ओशन का पानी जो सॉल्ट वाटर पानी है, इसको अगर फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करना है तो इसको डीसैलिनाइजेशन कहते हैं, डीसैलिनाइजेशन। और इसमें क्या किया जाएगा, उस पानी को इवेपोरेट किया जाएगा, उसके वेपर्स इकट्ठे किए जाएंगे, वेपर्स को कंडेंस करके
उससे फ्रेश वाटर, ये स्कूल में भी एक्सपेरिमेंट में बताते थे, उसको जो इवेपोरेट करना है चाचा उसमें लगता है फ्यूल, ये कॉस्टली बहुत है, वरना दुनिया में पानी की प्रॉब्लम ही नहीं होती। 14 साल पहले अगर पता चल गया था तो, ये सबको पता है। हाँ जी, तो क्या करना है पानी का, पानी बचाना है, सिंपल यार, सेव करो यार, सेव कंजर्व, क्या दिक्कत है? अभी तो बताया इतना सारा पानी आ रहा है यार, 4000 क्यूबिक आ रहा है, 3000 क्यूबिक को समझो। दो ऑप्शन है, एक तो ये वाला है, आप यू डू एक्सरसाइज, you do exercise, take good diet and sleep well, your health, you're saving your health। अदरवाइज तुम रोज जो है पिज्जा खाओ, यस, जो पीना है वो पियो, कोई हेल्थ नहीं, सिर्फ बैठा हुआ है, तो ये कहां पर जाएगा? आईसीयू। आईसीयू की फीस लगेगी, बट आईसीयू भी ठीक रखेगा तुमको टेक्नोलॉजी, वेंटिलेटर पे रखेगा, जिंदा हो तुम। तो देर इज टेक्नोलॉजी सोल्यूशन। उसने क्या कहा, सर पानी बनाओ ना, क्या टेंशन है, बनाओ, बट तरीका होना चाहिए ना। आई एम सेइंग वाटर कंजर्व्ड इज वाटर प्रोड्यूस्ड। मेरे पास तो आ ही रहा है ना, सेव करना है। अब सेव कैसे किया जाए, दैट्स द कैच, दैट्स वेयर आई वांट यू टू बी एनलाइटन्ड कि सेव कैसे किया जाए। तो पानी कैसे बनाए, बचाएं, बचाना है। तो पानी थोड़ा कम पिए, नहीं, अच्छा नहाना तो कम कर सकते हैं, नहीं, कुछ लोग वैसे नहीं नहाते, कुछ लोग जो नहाते नहीं वो सोचते मैं देश सेवा कर रहा हूं। अभी देश सेवा नहीं, देश में कई लोग मर गए तुम्हारी वजह से क्योंकि तुम उनके बाजू में बैठे थे, कह रहा देश सेवा कर रहा हूं। हाँ जी, क्या है, वाटर स्टोरेज ड्यूरिंग रेनी सीजन। तो पहली बात यह है, आपके नहाने से या पानी बचाने से कुछ नहीं होगा। पहले देखो पानी कंज्यूम कौन करता है, यस, सो लेट मी टेल यू कंजम्पशन सेक्टर्स, वाटर के कंजम्पशन सेक्टर्स, 3 सेक्टर्स जो वाटर को कंज्यूम करते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हाउस होल्ड, और अगर कोई बच गया, अगर कोई बच गया तो आसान वाला ऑप्शन है अदर्स। ठीक है, किसी ने लगा दिया धर्म कर्म में तो मुझे पता नहीं, बट ये 3 एरिया परसेंटेज टर्म्स में बताना है। सो कौन ज्यादा, मतलब अगर मुझे परसेंटेज में बांटना है, नीचे आएगा 100, क्या परमिटेशन, कोई परमिटेशन गेस करो, एनी परमिटेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हाउस होल्ड, कितना कितना होगा? ये कह रहे हैं एग्रीकल्चर 70, ये कह रहे हैं 20, और ये 10। ये इनका है, ये इनका सोचना है, बाकी लोग सम डेटा। रेज हैंड, हाँ क्या कह रहे हो आप? 40, 30, 70 हो गया, हम भी पी रहे हैं, चलो ठीक है, सब पे काम कर लेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और कोई एनीवन हु वांट्स टू गिव, जिसका इस आइडिया के आसपास है, दैट्स ओके, सम अदर थिंग। दुष्यंत कह रहा है कंट्रोल फ्लड वाटर, ऐसे कह रहा है कि कंट्रोल वोल्केनो, कैसे बैठूंगा उस पर, बुरा जाएगा यार, बुरा जाएगा सच में। सर मेक पॉन्ड, अरे पॉन्ड बाद में बनाएंगे, अभी पानी बचाने की बात हो रही है, क्या बता, लाभ बचाओ, जल्दी बताओ। और किसी के पास एनी वन एल्स लास्ट कॉन्ट्रीब्यूशन? एग्रीकल्चर 80, अच्छा बाकी 20%, ये इंडस्ट्री, ये सब 20, यस। सो आई रियली वांट टू टेल यू, किसी ने ऑनलाइन भी दिया है, किरण ने दिया है 30, 40, 20, 30, 40, 20। So I want to tell you, India's agriculture definitely is this situation. इंडिया का एग्रीकल्चर 80% ऑफ इंडियाज वाटर ले जाता है।
80% of India's water goes into agriculture, only 20 goes into household and industry. अब आपके पास डेटा है. यस, संदीप ने तो लिखा है 92% एग्रीकल्चर, 2% इंडस्ट्री. तुम्हें सिर्फ शराब ही समझ में आ रही क्या? कुछ और भी बनाता है? कह रहे 2% इंडस्ट्री. बट डेफिनेटली अगर ये 80 का अगर 85 भी कह दोगे तो हो जाएगा. तो जितने भी लोग यहाँ पे चिंता में है ना, आपको पानी जितना बचा लो. कल आप नहा रहे थे, नहाते नहाते देशभक्ति, यार नहीं यार पानी कॉस्टली, एक मग्गा कम, कुछ नहीं, तुम्हारा कुछ फर्क नहीं पड़ता है. दिस वन इज द प्रॉब्लम. इंडियन एग्रीकल्चर में इरिगेशन रिफॉर्म्स, ओवर इरिगेशन इज द प्रॉब्लम. बटन दबाया जब से ट्यूबवेल आया, वो भी आपको बताऊंगा कब से हुआ, टाइम भी बताऊंगा, विच ईयर दिस प्रैक्टिस स्टार्टेड. इरिगेशन का पूरा एक टॉपिक कराने वाला हूं इन द कमिंग ईयर्स. कुछ लोग क्लास गिन रहे कब खत्म हो जाए, कब खत्म हो जाए. चाचा टॉपिक तो होने दे यार, पूरा ज्योग्राफी करा के जाऊंगा, ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ के जा रहा हूं. सो दैट्स व्हाट माय इंटेंशन इज. सो इंडिया में अगर क्वांटिटेटिवली आपको पानी बचाना है तो कहां पे करना है? इरिगेशन. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई है, मोर क्रॉप पर ड्रॉप जो उनका नारा है, जिसको उन्होंने माइक्रो इरिगेशन पे फोकस किया, इसीलिए किया. इंडिया को आपने प्रॉब्लम देख लिया, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बात से नहीं होगा. द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर इज योर एग्रीकल्चर. इसलिए भी अभी थोड़ी देर पहले कहा, उस लैंड को क्या करो, दिस थिंग. अभी किसी ने कहा सर ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? प्रोडक्टिविटी ऐसे बढ़ेगी, प्रॉपर इरिगेशन, proper seeds, proper care. That's what we are talking about. Or integrated nutrient management, integrated pest management. Multiple ways in this. सरकार उन पे काम भी कर रही है. फिर मैंने ऐसे कहा ना, ये वो वाले लोग हैं जो गाय या बैल पर तेजाब डालकर उसको भगाने की कोशिश कर रहे हैं. तो हम लोग ऐसी वाली बात कर रहे हैं. So agriculture in India really requires those reforms. And सबसे ज्यादा प्रॉब्लम एग्रीकल्चर के बाद अगर कोई कर रहा है तो ये है ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन. ये भी बताऊंगा, अभी तो सरफेस की बात कर रहा हूं. तो सरफेस में जो पानी है, नदी तालाब का पानी सबसे ज्यादा कहां पर यूज हो रहा है? एग्रीकल्चर में. और ये सब कहां है? 20%. ये क्या है? क्वांटिटी. इज एवरीवन ओके? तो अगर आपको वाटर मैनेजमेंट करना है तो पहला टारगेट क्या होना चाहिए? एग्रीकल्चर. एंड नॉट एज अ विलन. एग्रीकल्चर विच इज गोइंग इनएफिशिएंट. एग्रीकल्चर विच इज गोइंग इनएफिशिएंट. एंड रिमेंबर, ब्लैक सॉइल में ओवर इरिगेशन क्या करता है? वाटर लॉगिंग करता है. यस, नंबर वन. सेकेंड थिंग इज राजस्थान में चावल क्यों लग रहा है? माई क्वेश्चन इज व्हाई वेट पैडी इन राजस्थान? वहां पे इंदिरा गांधी नहर गई, ठीक है, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर चावल लग रहा है. क्यों लगेगा? Is it not wise to have the selection of agroclimatically suitable crops? Agroclimatically suitable crops, the pulses and oil seeds, ये बहुत ज्यादा नहीं मांगते हैं. मिलेट्स, अब तो भारत सरकार मिलेट रेवोल्यूशन की जो बात कर रही है, श्री अन्न क्यों बोल रही है सरकार? आई टोल्ड यू, क्योंकि उस एरिया पर प्रोडक्टिविटी, जो अभी किसी ने कहा ना सर फर्टिलाइजर लगेगा, फर्टिलाइजर नहीं लगेगा. चॉइस ऑफ द क्रॉप, दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. एक बात बताइए, आपको छुट्टी पे जाना है एंड यू आर अ स्टूडेंट, यू डोंट हैव अ बजट, वेरी हाई बजट. आप छुट्टी के लिए, वेकेशन के लिए 31 दिसंबर प्लान करोगे या कोई लीन सीजन प्लान करोगे? लीन सीजन जहां सस्ता होगा. 31 दिसंबर को तो सबसे महंगा होने वाला है कि नहीं? उससे अच्छा घर में बनाओ. ट्रू और नॉट? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, बिगर प्रॉब्लम राइट नाउ इज कि हम जो एग्रीकल्चर में ध्यान से क्रॉप भी सिलेक्ट नहीं करते हैं. हम ऐसी वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं इन एरियाज वेयर दे आर नॉट एग्रोक्लाइमेटिकली सूटेबल. बिहार में मैंने आपको बताया उनका सॉइल बेस्ट है, उनका वाटर रिसोर्सेज नेचुरली बेस्ट है, चीप लेबर भी वहां पर है. वहां लगाओ मजे से धान, क्या दिक्कत है? दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. एंड विद क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम्स आर हैपनिंग. इवन बिहार में भी किसान को इरिगेशन के लिए वो होता है, और किसान इतना छोटा किसान है कि वो इरिगेशन तक के लिए जो है उसके लिए जनरेटर लगेगा कि नहीं लगेगा, वो भी नहीं अफोर्ड कर सकता. दिस इज वेयर द गवर्नमेंट कैन कम इन.
दिस वेयर द गवर्नमेंट ऑफ बिहार कैन कम इन प्रोवाइडिंग देम अशोर्ड इरिगेशन, वहां पे प्रोवाइड की जा सकती है। हम राजस्थान को अशोर्ड इरिगेशन देख रहे हैं, तो सर क्या राजस्थान में कृषि नहीं होनी चाहिए? हो भी सकती है। अभी मैंने आपसे कहा ओलंपिक में पैरालंपिक के प्लेयर्स को भेजना समझदारी है, गलत है? गलत है ना? तो राजस्थान, मुझे लगता है एग्रीकल्चरली राजस्थान में दुनिया के पोटेंशियल है, एग्रीकल्चरली राजस्थान से राइस लगवाना इज नॉट अ वाइज थिंग। तो फिर राजस्थान से क्या कराया जाए? मिलेट्स करवाया जाए, पल्सेस करवाया जाए। प्रॉब्लम यह है जब बाजरा लगाता है किसान, वो बाजरा लगाता है, उसको लिमिटेड इनकम मिलती है और वो कंपेयर करता है अपने को कॉटन वाले से, कॉटन वाला बढ़िया छाप रहा है यार, ट्रू और नॉट, ही फील्स बैड ऑल्सो। वो कहता है बाजरा कोई खा नहीं रहा, वो बाजरे को इज्जत नहीं दे रहा है। तो फार्मर के भी तो एस्पिरेशंस होते कि नहीं होते? तो कल सोच के बताना मुझे कि क्या करे राजस्थान। ठीक है, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी डू वी गेट दैट? एक बोला एमएसपी, एमएसपी हो गया। एमएसपी में भी जो हम एग्रीकल्चर में बात करेंगे, एमएसपी में भी सरकार ने पहले किस पे फोकस किया है? फूड क्रॉप्स पे। दैट्स योर इकोनॉमिक्स की क्लास में वैसे भी बताया गया, सो आई डोंट वांट टू ब्रिंग दैट आइडिया हियर, बट दैट्स देयर। सो यहां पर ये करना है। अच्छा, फ्रेश वाटर में एक और प्रॉब्लम है, मैंने कहा ना सेव एंड कंजर्व। कंजर्व में एक प्रॉब्लम ये है, पानी है बट उसको पी नहीं सकते। रिपोर्ट से कि ऋषिकेश के बाद हरिद्वार के अंदर ही जो है गंगा का पानी, आफ्टर क्रॉसिंग हरिद्वार, इट इज नो लॉन्गर पोर्टेबल। इतना पोल्यूशन वहीं पर हो जाता है। ह्यूमन पॉपुलेशन इज सो मच, जब तक माउंटेन्स में रिवर इज प्योर, उसके बाद ह्यूमन इफेक्ट उस पर आने लगता है। सो शुड वी, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंजर्व, शुड वी ऑल्सो कंजर्व इट? क्वालिटी, यस और नो? पोल्यूटेड वाटर कौन पी रहा है? बेचारे पशु पी रहे हैं। एनिमल्स, यूल सी किस तरह का पानी वो पीने के लिए मजबूर होते हैं। That's what we are talking about. Why pollute in the first place? Why pollute in the first place? So pollution को कैसे रोकेंगे? एग्रीकल्चर। पोल्यूट कौन कर रहा है ये भी तो देखना पड़ेगा। अब चीजें बदल गई। Now things have suddenly changed. So policy maker must understand who's polluting it. Industry and household. Industry and household. Who's consuming it? कंजम्पशन एग्रीकल्चर की सब, बट एग्रीकल्चर से तो पेस्टिसाइड निकलता है, एग्रीकल्चर से तो वी सी फर्टिलाइजर ऑल्सो, वो भी तो करेगा। सो आई वांट टू टेल यू अ फेमस लाइन फॉर पोल्यूशन इज, सोल्यूशन टू पोल्यूशन इज डाइल्यूशन। यहां इतना पानी यूज होता है कि वो डाइल्यूट हो जाता है, तो इसलिए वो उतना पोल्यूट नहीं करता है। कहां पर ज्यादा होता है? इंडस्ट्री में। एक इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री से हैजर्डस केमिकल निकल रहा है, नदी में जा रहा है, दैट इज गोइंग टू किल द रिवर एंड दैट्स अनट्रीटेड। अनट्रीटेड वेस्ट गोइंग इनटू दैट, वो रिवर को बर्बाद करे। इनफैक्ट कुंभ मेला से पहले भी अपस्ट्रीम में, कानपुर में, बाकी जगहों पर यह था कि ड्रेन्स को, जो नाले हैं, उनका पानी नदी में नहीं गिरेगा। नदी में नहीं गिरेगा तो कहां गिरेगा? सोचो तुमने पानी पिया और तुमको जाना है, रोक रहे हो, कब तक? कब तक? आपने उस पानी के ट्रीटमेंट के लिए कुछ किया ही नहीं है। दिल्ली का सीवेज वाटर ट्रीटमेंट, दिल्ली इज अराउंड 30 to 40% ऑफ दिल्ली सीवेज इज ट्रीटेड। अगर कैपिटल में ये है, बाकी शहरों में आपको लगता है कि ट्रीटमेंट होगा? यस और नो? अभी आई वाज रीडिंग हिंदू न्यूज़पेपर में, शायद कल आपने देखा होगा कि वो बैन कर रहे हैं, आज के में आया, they are banning all these discharge of soap, car wash का soap and everything। खैर आप लोग नहीं पढ़ पा रहे होगे क्योंकि आपका तो एग्जाम है। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा है कि वो सर्फेक्टेंट और डिटर्जेंट्स जो हैं यमुना के पानी को खराब करते हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, पोल्यूशन हो रहा है, कौन कर रहा है? इंडस्ट्री। हैजर्डस, और इसके में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, एक तो ये कंसेंट्रेटेड होता है और ये सीरियसली हैजर्डस होता है, दिस कैन किल थिंग्स। So that's one. तो इंडस्ट्री को अलाउ नहीं करना चाहिए। हाँ, अलाउ नहीं होता है। So as per rules they are not supposed to discharge, but rules को एग्जीक्यूट कौन करेगा? इंस्पेक्टर, जिसके लिए लोग एसएससी दे रहे हैं और सब दे रहे हैं। एक बार बन गए बस,
फिर कंपनी का ये ट्रीटमेंट प्लांट आपका नहीं चल रहा है। सर आप चलने का क्या लोगे? और दबा के, मतलब दैट्स एक्चुअली एंटी नेशनल जो ये कर देते हैं। अब आपको पता है गवर्नमेंट ने इससे परेशान होकर क्या किया है? गवर्नमेंट ने वहां, मतलब वहां प्लांट ही नहीं होता है, इंस्पेक्टर अप्रूवल करके आ जाता है, वहां प्लांट ही नहीं होता है। So government now does not give you an approval for an industry until unless you submit a plan in advance कि आप उसको treat कैसे करोगे. That's one. So industry is the culprit for chemical pollution, concentrated pollution, quality. Are we also? Are we also? हम लोग कैसे? सीवेज ही तो है सर, कितना सीवेज कर देंगे? सोच के देखो, एज सिटीज आर ग्रोइंग वर्टिकली नॉट हॉरिजॉन्टली, प्रॉब्लम है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा में कुछ 170 के करीब टावर है, 170 के करीब फ्लोर है, ऐसे कुछ है। उसमें से रेजिडेंशियल कितने होंगे? 150 होंगे, हर एक में 4 फैमिली रह रही, 800 फैमिली रोज सुबह फ्रेश होकर आई, सब वहीं पर, सब उसी टावर के नीचे। सो पहले क्या था? सिटीज वर एक्सपैंडिंग हॉरिजॉन्टली, नाउ सिटीज, अर्बन एरियाज आर एक्सपैंडिंग वर्टिकली। देयर इज अ ह्यूज सीवेज वेस्ट, वेयर डू यू डिस्पोज इट? गवर्नमेंट नॉर्म्स अभी आ रहे हैं अबाउट सीवेज ट्रीटमेंट, उससे पहले तो ये सब ऐसे ही है। सो दैट्स ऑल डंप्ड, वो सब कहाँ जाएगा? तो ग्राउंड वाटर में जाएगा या फिर सीवेज ड्रेन्स में जाएगा। So quantitatively that is the problem, qualitatively that is the problem. If we have to, when I say save and conserve, तो हमें क्या करना हो? क्वांटिटी के लिए किसको फोकस करो? एग्रीकल्चर को। क्वालिटी के लिए किसको फोकस करो? सीवेज वेस्ट है आपका, किचन वेस्ट, बायोलॉजिकल वेस्ट दैट हाउस होल्ड्स आर प्रोड्यूसिंग, यस और नो? हॉस्पिटल से प्रोड्यूस हो रहा है बायोलॉजिकल, वो हैजर्डस होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूल्स बना रखे हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल डिस्पोजल के रूल्स बने हुए हैं, हॉस्पिटल के हैजर्डस के रूल्स बने हुए हैं, ऑल दोस थिंग्स। ये एनवायरमेंट के पोल्यूशन में हम लोग पढ़ाते हैं, नॉट हियर, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज पोल्यूशन के मामले में हुज रिस्पॉन्सिबल? इंडस्ट्री एंड हाउस होल्ड। क्वांटिटी के लिए हाउ टू सॉल्व इट? एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स आने चाहिए, इरिगेशन रिफॉर्म्स आने चाहिए। गवर्नमेंट इज टॉकिंग अबाउट माइक्रो इरिगेशन, डू वी गेट दैट? वहां पर हो गया। इसको कैसे सॉल्व करें? हाउ डू वी सॉल्व दिस पोल्यूशन प्रॉब्लम? ट्रीटमेंट प्लांट। तो इंडस्ट्री में अगर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, इंडस्ट्री ने पोल्यूट कर दिया, तो क्या करना चाहिए? फाइन करो सर। तो देयर इज एन इंटरनेशनल प्रिंसिपल विच इज कॉल्ड पोल्यूटर्स पे, पोल्यूटर्स पे। तो पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल से फर्स्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्री मस्ट बी मेड अकाउंटेबल, made accountable. They should have such strict laws that they are not going to discharge it. But if discharge happens, polluter pay करेगा। तो अगर आपने रेड लाइट को पार किया तो ट्रैफिक पुलिस कितने का चालान बताता है? 500 के जमाने चले गए बेटा। कभी दिल्ली में ट्राई कर लेना, पुलिस अंकल जहां दिखे वहीं के कर लेना, ऐसा वाला फील आ जाएगा। 10,000 चल रहा है, 10,000, तो डर लगना चाहिए। वो मैंने आपको बताया था पोल्यूशन पे कितना लगा रहा था, 32,000 रुपीज जो इंडिया में। आई रियली वॉन्ट टू टेल यू, ये डेवलप्ड वर्ल्ड के फाइन्स हैं जो इंडिया में लगाए गए। डेवलप्ड वर्ल्ड में अगर आपने ऑयल स्पिल किया है ओशन में, यू विल बी मेड लाइबल टू पे एज मच एज पॉसिबल। लोग बैंकरप्ट हो जाते, इतना ज्यादा फाइन लग जाता है, स्पेशली ऑयल के केस में। इंडिया में ये पोल्यूशन पे फाइन नहीं है। So that has to be there. लोगों को, ताकि वो ट्रैफिक लॉज वायलेट ना करें, फाइन्स बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं? Then government's responsibility to give us good roads, that's a sad thing, वो नहीं मिलता है। फाइन लगा दिए, इसलिए फाइन में भी वो पुलिस वाला भी फाइन लेना नहीं चाहता है। Yes or no? So similarly what I am trying to say here is when we are talking about industry में severe polluter पे लगना चाहिए। अगर आप एक प्राइवेट जू रख सकते हो तो प्रदूषण का तो टैक्स दे ही सकते हो, दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो? इंडस्ट्री शुड बी पोल्यूटेड एंड इफ दे आर पोल्यूटिंग दे शुड बी टैक्स फॉर दैट। और हमारा क्या है? हम पे भी कोई फाइन लगना चाहिए। पॉटी टैक्स भाई साहब, मतलब वैसे ही ताई बहुत दुखी हैं, जितना भी बजट वो लेके आते हैं, अगर बजट में ताई पॉटी टैक्स ले आई, एक ही जगह तो शांति से बैठते थे।
वहां भी दिक्कत हो जाएगी, ये सुनो। तो मुझे नहीं लगता कि पॉटी टैक्स आना चाहिए, बट मुझे ये लगता है कि everyone cannot create sewage treatment plant, but community based sewage treatment plants can always be there. I think community based sewage treatment plant can always be there. That's what we are talking about. So people should also be made aware of this thing. And garbage segregation तो बहुत से, I think Goa is one state जो बहुत अच्छे से follow करता है. Garbage जो biological waste है उसको separate करना, garbage segregation, that has to be one place where we need to work on. Get that? ये कुछ मैंने आपसे ideas share किए हैं about water resources of India. Was I able to convey that India is in a situation of water stress? And that is because of spatio-temporal variability. Can I also say that आगे की न्यूज बहुत अच्छी नहीं है, बिकॉज क्लाइमेट चेंज इज गोइंग टू मेक द सिचुएशन फर्दर वर्स. तो समझदार को इशारा काफी है, वी नीड टू वर्क ऑन दैट. क्वांटिटेटिवली किस पे फोकस होना चाहिए? एग्रीकल्चर. क्वालिटेटिवली इंडस्ट्री एंड हाउस होल्ड. ग्राउंड वाटर रह गया है, आई एम नॉट टॉक्ड ऑफ इट, आई एम अवेयर ऑफ दैट. आई वॉन्ट टू इंटीग्रेट ग्राउंड वाटर विद एग्रीकल्चर, तो हम उस पर बात करेंगे. कल से हम एग्रीकल्चर शुरू कर रहे हैं, ठीक है. There might be some problem for tomorrow's class. अगर आपके पास मैसेज आता है, because my father will be finally be discharged tomorrow. So if I am required around afternoon, I might have to be there. But otherwise, that is going to be there. So next topic क्या आ रहा है? Agriculture. Please start reading that from your NCERT class 12 part 2 में agriculture है, ठीक है? Thank you. जय हिंद.